Welcome everyone. Today we are going to discuss decision making topic. This is an important topic in your management optional syllabus, and not only management optional. If you see, this topic is also statistics optional, and this is the second lecture on decision making. In the last lecture we discussed questions, UPSC questions from this topic. See, if you see what this topic is very important. See, QAM and OM is that area, QAM, OM, fin and account, where you can score almost 100% marks. See, generally what happens in management optional, it's very scoring and safe. If you see the UPSC ITI, it is one of the most successful optional. But how that will happen when you see paper 1. In paper 1, you have 6 modules, right? The paper 1 section is mainly OB, HRM, MFP, and paper 1 section 2 is fin account. So that is very scoring. Similarly, paper 2 section A, quant, OM, MIS, that is also scoring. But this is not to suggest that paper 1 section A and paper 2 section B is not scoring. It depends upon human mind. If someone is good in quantitative, then they will score in quant and fin well, and if someone is good in, let's say, qualitative things, they will score well in other parts. So what my point is, if you know this topic well, decision making, and generally every year you will find 15 to 20 marks. For instance, in the previous class, we discussed question on e-education startup, right? This question appeared in 2019. So those who are watching this lecture first time, they can take that solution. I think we will upload this solution on group on this link of this channel as well. Then there was a question in 2012 as well. It's a wonderful question, and according to me, it was one of the most difficult question UPSC asked from decision making problem. Not only decision making, but one of the most difficult problem UPSC asked in management paper. And this question also we have solved. And this is question number 8C. Question number 8C of 2012, paper 2. And this question is on about Black Gold Oil Field Company. And we have solved this, right? You will find the solution in our study material or in the previous lecture. What my idea is, today I'm going to discuss a question. I will say it's a very difficult question. if you understand if you can understand this lecture, you can understand anything in decision making as far as the UPSC is concerned. So let me give you an analogy. Let's say this is your UPSC is asking this much in decision making. All right. So the question which we are going to cover today, its reach is so much. So if you understand this lecture, you will be very, very comfortable in any question of decision making, whether decision tree or there are questions also on Hurwitz, maximum likelihood, then max-min, all those things. This decision making is covered in your QAM and OM, and the questions are from easy to difficult. Easy means, let's see, if you see question which appeared in 2013. In 2013 also there was a question on decision making. Let me see. Give me 1 second. Yes, this was question number 2C. Question number 2C in 2013. Right? Very simple question. It again, an oil company is considering a bid for shale oil development. उसमें कुछ नहीं expected value लेना है. बहुत easy question है. 2019 वाला भी इतना डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन ये क्वेश्चन रियली में डिफिकल्ट था 2012 वाला. और आज हमारा आइडिया है इससे भी थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि नहीं आपके साथ और डिसीजन मेकिंग से कोई थ्योरी वेरी नहीं आता यूपीएससी में, न्यूमेरिकल से आता है. तो न्यूमेरिकल आपको होना चाहिए. Those who are not aware of this theory, so I will try to discuss the theory as well. And this is my idea today. But before that, those who are preparing for management optional CSE 2023, those who want to study material, lecture, online, offline, or test series, with them I want to share this thing. This is Lukmaan IAS website. Okay, here you can enroll for the course. What you can do, you can go to the you go home page, click on courses and admission, then management optional will be there. After that, just a minute. Okay, from here
This is the batch is starting on 13th of June. 13th of June we are starting the batch. What happened? 13th of June. Classes are both offline, online. Don't worry about the timing. Timing is fine, but we are having both morning and evening batches. 4-month classes, 5 days a week. You can also, get video. You can enroll from here. If our previous result, these are the ranks. You share my scored highest mark, 320 so far in management, and these students also scored somewhere between 290 to around 300. Okay, these are the course feature. Again, see, I tell you, management every year around 80 to 90 people write with management option. I will say these are very quality students. Although management is not very popular option, but when you see the aspirant opting management option, they're very quality. And management have, let's say, if you are good in paper 2 section A, then that has bearing on your GS economy paper. If you understand international business, government business interface, so that will help you there. So with confidence, please, first you have to take the decision. What option is good for you. I can only say that it is a wonderful option. This is about me, right? And so now let's move to the question. Okay. Now this is what we are going to discuss. Decision tree making. So let me first show you the question which I want to discuss. Okay. Right. Yes, this is the question. Now, see, the question is very difficult, very, very difficult, so you have to be attentive. It will, require your attention. And there are many layers involved in solving this question. So let us see. WalkTech is a manufacturer of electronic toys with a specialty in remote control miniature. Fine. Now, WalkTech is considering the introduction of a new product called hovercraft, walk attack. Okay, that's not a problem. Now, what they are saying, preliminary design have already been produced at a cost of $2 million. Okay, preliminary design ho gaya. Let's say they want to introduce that, so they just made a preliminary design and that at the cost of $2 million. To introduce a marketable product requires the building of a dedicated production line. ठीक है, आपने डिजाइनिंग कर लिया, लेकिन उसको प्रोडक्ट में लाने तो you have to produce it, right? So that will require a production line at the cost of $12 million. See, एग्जाम में भी आप देखो क्वेश्चन लेंदी है. मैनेजमेंट पेपर में क्या होता है, पेपर 2 में लोग स्ट्रेस हो जाते हैं. सपोज यू आर इन मेंस, in मेंस. So if I can share you what will happen with you, पहले क्वेश्चन में लोग 40 से 45 मिनट निकल जाता है, वहीं पे टेंशन आ गया. और उसके बाद देखेंगे कि कोई को डिसीजन ट्री का प्रॉब्लम है तो और पसीना आ जाएगा. क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन को पढ़ने में. सो व्हाट यू हैव टू डेवलप एबिलिटीज. फॉर एग्जांपल, आपको एबिलिटी डेवलप हो गया कि ओके, जैसे ही आपने पढ़ा कि ऑलरेडी बीन प्रोड्यूस्ड, तो आपके माइंड में तुरंत संक कॉस्ट जैसा आना चाहिए. एंड डोंट वरी, इट विल कम विद प्रैक्टिस. जैसे यहाँ पे आपने देखा कि प्रोडक्शन लाइन है 12 मिलियन का हो रहा है, राइट? तो अपने नोट करते चलो. इफ यू आर अटेम्प्टिंग, सी इफ यू आर गुड इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन ट्री प्रॉब्लम्स, तो आपको डेफिनेटली करना चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि इसमें फुल मार्क्स मिलेगा, राइट? नाउ मूव टू द सेकंड पार्ट. In addition, before the product can be launched, a prototype can be developed, right? Prototype can be developed, must be built and tested for safety. The prototype can be crafted in the absence of a production line at a cost of, right? मान लीजिए आपने प्रोडक्शन लाइन नहीं बनाई है, आप पहले क्या कर रहे हो, एक तो देखा है कि आपने नहीं, वो पहले तो प्रीलिमिनरी डिजाइन हो गया, फिर आप प्रोडक्शन लाइन बनाओगे, फिर उसको मार्केट करोगे. प्रोडक्शन लाइन का कॉस्ट कितना है? $12 मिलियन. दूसरा ऑप्शन क्या है? प्रोटोटाइप बना लो पहले, और प्रोटोटाइप का बनाने का कॉस्ट कितना है? 0.5 million. But for this you need not to develop production line. But if prototype is created after the production line, तो फिर तो then its cost is almost zero, right? In negligible. You can, यदि आपने प्रोडक्शन लाइन बना लिया, फिर तो प्रोटोटाइप बनाने का, प्रोटोटाइप का मतलब होता है इसका सैंपल. जैसे मान लीजिए एप्पल अपना फोन लॉन्च कर रहा है, तो उससे पहले प्रोटोटाइप बना लिया देखने के लिए, नहीं हाउ द मार्केट विल बिहेव, राइट? तो उसकी जनरली कॉस्ट कम होती है. प्रोडक्शन लाइन में तो आपको पूरा असेंबली लाइन बनाना पड़ेगा. ओके, so आपके माइंड में अब तक क्या है? लेट्स से यू हैव रेड दिस क्वेश्चन सो फार, यू आर थिंकिंग
ओके, एक ऑप्शन है मेरे पास प्रोटोटाइप बनाने का, एक ऑप्शन है प्रोडक्शन लाइन बनाने का, और फिर प्रोटोटाइप बनाने का, और देन प्रोटोटाइप कॉस्ट इज ऑलमोस्ट 0, अदरवाइज प्रोटोटाइप कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज 0.5 million. Now then what it is saying, there is uncertainty. See, now this decision making problem which we are discussing, this is under there are two kind of decision making under certainty and uncertainty, right? तो ये सब आपका अनसर्टेनिटी पे आता है डिसीजन ट्री वाला. ओके, जो हम जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आया था आपका 2000 सर्टेनिटी वाला, मैं आपको प्रॉब्लम बता देता हूँ. 2015 में था, 15 या 16 में, लेट मी सी, यस 2015 में ये क्वेश्चन आया था आपका, क्वेश्चन नंबर 2, पेपर 2 में क्वेश्चन नंबर 2. दिस आर जो क्वेश्चन ऑन maximum criteria, equal likelihood criterion, this is called decision making under certainty. Okay, certainty. And ये भी बहुत सिंपल है, राइट? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है. सी, ये वाले तो क्वेश्चन सिंपल होते हैं और ये आप आराम से कर सकते हो. जनरली जो डिसीजन ट्री के जो मार्क्स देता है यूपीएससी, वो 15 to 20 मार्क्स के होते हैं. जो सर्टेनिटी वाले क्वेश्चन आते हैं वो हार्डली 10 मार्क्स के होते हैं, और ये आपके 2-3 मिनट में हो जाते हैं. इसमें टाइम लगता है आंसर, और ये आपने कर लिया तो अच्छा है, राइट? ये आपका स्कोर एकदम बूस्ट हो जाता है. ओके, नाउ लेट्स सी, देयर इज अनसर्टेनिटी ओवर द व्हाट सेफ्टी रेटिंग विल वॉकटेक विल गेट. मान लीजिए आपने को प्रोटोटाइप बना लिया, टॉय बना लिया, राइट? टॉय विल बी यूज्ड बाय चिल्ड्रन. अब उसमें कितना सेफ है वो गवर्नमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी दे विल सी आफ्टर इट. सो दे आर अनसर्टेन व्हाट सेफ्टी रेटिंग इट विल गेट. This could have a significant impact on demand. If the safety rating is not good, then right, as a lower safety rating means that it will increase the minimum age required. मान लीजिए कोई टॉय है वो सेफ नहीं है, तो इसका मतलब उसका एज जैसे हो सकता है कि मान लीजिए आपका 20 से प्लस जो लोग हैं वो यूज करेंगे. मान लो सेफ है तो वो 8 से 8+ वाले भी यूज कर सकते हैं. तो यानी आपका रेटिंग कम है तो यहाँ पे नंबर ऑफ यूजर रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि जो बच्चे ना, बच्चे तो 8 से 20 के एज में ज्यादा बच्चे होंगे ना. 20+ वाले तो इसको यूज नहीं कर सकते. यदि इसका गाइडलाइन है कि 20+ केवल यूज करेंगे तो ये वाला सेक्शन यूज नहीं कर पाएगा, राइट? तो दैट्स व्हाई ए लोअर सेफ्टी रेटिंग विल इंक्रीज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर द यूजर्स. सेफ्टी टेस्टिंग कॉस्ट. नाउ यू हैव टू डू द सेफ्टी, once you have made the prototype, you have to do as well as the safety testing cost. Safety testing cost $1 million. The outcome of safety test is estimated to have a 60%. Okay, now आपने safety testing किया, आपके 2 ऑप्शन थे, प्रोटोटाइप बना लो या प्रोडक्शन लाइन, राइट? उसके बाद you can move for safety testing. Then safety testing can get 3 results. Is estimated to have a 65% chance of resulting in a मिनिमम एज ऑफ 8 years. यदि मान लीजिए 8 years तक के अलाउ करना है तो उसकी चांस कितना है? 65%. देन 30% चांस ऑफ ए मिनिमम एज ऑफ 15 years. 15 years में कितना है? 30%. एंड ए 5% चांस दैट द प्रोडक्ट विल बी डिक्लाइंड अनसेफ. हो गया ना कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव. 65 30 95 + 5%. और ये अनसेफ वाला क्राइटेरिया है. ये आपका, यदि आपने सेफ्टी टेस्टिंग किया एट द कॉस्ट ऑफ 1 million, तो ये आपके 3 रिजल्ट मिल सकते हैं. फाइन. ये ओके. अनसेफ है तो फिर आप उसको डेवलप नहीं करोगे, राइट? इन विच केस इट कैन नॉट बी सोल्ड एट ऑल. द कॉस्ट ऑफ इंप्रूविंग द सेफ्टी रेटिंग ऑफ ए फिनिश प्रोडक्ट डिजाइन इज प्रोहिबिटिव. यानी आपने एक बार डिजाइन बना लिया है, सब कुछ प्रोडक्शन हो गया, उसका सेफ्टी रेटिंग इसके अंदर तो पूरी असेंबली लाइन चेंज करनी पड़ेगी. दैट्स व्हाई दे आर सेइंग इट इज प्रोहिबिटिव. आफ्टर सक्सेसफुल सेफ्टी टेस्टिंग द प्रोडक्ट कुड बी लॉन्च एट द कॉस्ट ऑफ $1.5 million. तो आप देख लो कितने सारे कॉस्ट आ रहे हैं इसमें. सी, इन सब क्वेश्चन में यही आपको बहुत डीपली सोचना पड़ता है. आपके माइंड में चलता रहना चाहिए कि मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या कॉस्ट है. एक बार आपने उसको कैप्चर कर लिया, देन इट बिकम वेरी इजी, राइट? देयर इज आल्सो अनसर्टेनिटी ओवर डिमांड, which will have a crucial impact on the eventual profits. Currently, the best estimate is that the finished product will be available to 8 to 14, right? This is 8 to 14. 8 to 14 years demographic have a 50-50% chance. यदि मान लो 80-14 वाला है तो 50-50% चांस है.
ऑफ रिजल्टिंग इन ए प्रॉफिट ऑफ ईदर 10 मिलियन और 5 मिलियन। यानी आपके प्रॉफिट 10 मिलियन हो सकते हैं या 5 मिलियन हो सकते हैं। किस रेंज में, किस एज ग्रुप में, 8 टू 14 वाले में, यानी 14 से कम वाले में, राइट। उसके 50-50% चांस है, यानी ऑन एवरेज आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, यानी 5.5 प्लस 2.5 यानी 7.5। ये एक आपका वहां से मिला है 8 टू 14 वाले एज ग्रुप में। अब सेकंड एज ग्रुप का देखते हैं। सेकंड एज ग्रुप इज 14 प्लस। सिमिलरली देयर इज ए 50-50% चांस ऑफ ईदर 14 मिलियन और 6 मिलियन, राइट। विच एज ग्रुप, 14 मिलियन और 6 मिलियन फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 15 ईयर्स और अबव। आपने देखा ना 3 एज ग्रुप थे, देयर वर 3 एज ग्रुप। वन एज ग्रुप वाज 8 टू 14, वन 15 प्लस और एक अनसेफ, राइट। सो इसमें कितना है, 14 एंड 6, फिर दोनों का 50-50% चांस। These demand outcomes are independent. And what do you mean by independent? See, whenever you're a student of management or statistics, what you will say, independent. Independent का एक ही definition होता है, right? Probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B, right? Once you become, if you're writing UPSC, see वो सब नहीं बोलना है वहाँ पे, right? See, their professor, when they will check your copy, they will look for clarity. ये नहीं बोलना है कि A आया B, no, independent mean the probability of A coming B or B coming B. No. See, just hit on the, hit on the nail. So this is the condition of independence, right? So same way, okay, somebody has to explain what is the meaning of independence in this. कि probability of 8 to 14 and probability of 15 above, इन दोनों का intersection is equal to product of both these probabilities, right? The profits do not take into account the cost previously, right? So what they are saying, the profit which they have mentioned do not take the, जो अभी यानी आपके प्रॉफिट बताए ना 50-50% जिसके चांसेस थे, डू नॉट टेक अकाउंट द कॉस्ट प्रीवियसली डिफाइंड। तो इसका मतलब उसमें से कॉस्ट को आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। दे आर मेजर्ड इन एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू टर्म। इसका क्या मीनिंग है प्रेजेंट वैल्यू? प्रेजेंट वैल्यू का मतलब सपोज कि ए डॉलर टुडे इज मोर वर्दी देन द डॉलर टुमारो। जिससे मान लीजिए आपके कोई कैश फ्लोज है, मैनेजमेंट स्टूडेंट जानते होंगे, मान लीजिए कैश फ्लोज है, मान लीजिए आपके फ्यूचर में कैश फ्लो 10 100 रुपीज है और आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सपोज कीजिए 5% है। तो आपसे पूछा जाए कोई इसका प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा, तो आप उसको डिस्काउंट करोगे, राइट। दिस इज कॉल्ड डिस्काउंटेड मेथड। दिस विल गिव यू प्रेजेंट वैल्यू एंड डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। यदि ये नहीं पढ़ा है तो वी विल डिस्कस इन इकोनॉमिक्स क्लास, नो प्रॉब्लम। सो व्हाट इनडायरेक्टली दे आर ट्राइंग टू से कि आपको डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड लगाने की प्रॉफिट्स में जरूरत नहीं है, बिकॉज दे आर मेजर्ड इन एक्सपेक्टेड। उन्होंने ऑलरेडी जो प्रॉफिट दिए हैं वो प्रेजेंट वैल्यू के टर्म में मेंशन किया है, ओके। सो दिस इज वन थिंग। Now, and so they are comparable directly with the cost. What is the optimal plan of action for the work? Now this is the question. What is the optimal plan of action and what is the current expected economic value from the project? Okay. Now first I will do, थोड़ा सा मैं आपको see, अब मान लो आपने एग्जाम में ये देखा ही है, right? So what I will do, इसको इस तरह सोचो आप। ओके, सो व्हाट आई विल डू, जस्ट 10 मिनट। ये क्वेश्चन का बोर्ड को शेयर करने में प्रॉब्लम होगी, तो आई विल कीप ए हार्ड कॉपी ऑफ दिस क्वेश्चन हियर। पहले आपके माइंड में डिसीजन ट्री से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम है, पहले आपके माइंड में एक स्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए, एंड दिस स्ट्रक्चर विल डेवलप विद प्रैक्टिस। कि ओके, आपने क्वेश्चन पढ़ा, सी आप इमेजिन करो, आप एग्जाम सिविल सर्विसेज मेंस में हो, पसीना आ रहा है, राइट, और इस तरह क्वेश्चन है और इस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं। इतना डिफिकल्ट तो नहीं आया, बट अगेन इसका 50-60% तो आ ही रहा है, उसको टैकल करना है। तो आपका किस तरह माइंड चलना जाएगा? सबसे पहले कुछ थ्योरी होनी चाहिए। थ्योरी मैं अभी आपको बताऊंगा, बट पहले मैं इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ। तो आप क्या देखोगे कि आपके पास दो ऑप्शन थे। एक तो क्या था आपका, बिल्ड प्रोटोटाइप बना सकते हो। देन दूसरा ऑप्शन क्या था कि बिल्ड दैट मैन्युफैक्चरिंग लाइन, राइट। व्हाट वाज द कीवर्ड, just a minute, let me see what was the keyword. Build a production line, the keyword was the production line, okay, production line। उसके बाद क्या कर सकते हो आप, प्रोटोटाइप आपने बना लिया, देन
you saw that you will do the safety test and it was for the 3 groups. You will see whether it is safe for 3 groups. कौन कौन से ग्रुप्स थे? 8+ years safe, 14+ years एज था, और एक केस में क्या था? अनसेफ था, राइट? मान लीजिए आपका सेफ भी आ गया किसी केस में, मान लीजिए इट इज सेफ, देन इस केस में दे आर नॉट, नाउ दिस इज कॉल्ड डिसीजन एंड दिस इज कॉल्ड नेचर. इसका डिफरेंस क्या है दैट आई विल एक्सप्लेन थ्योरी, बट फॉर द टाइमिंग आपके पास शुरू में 2 ऑप्शन थे, प्रोटोटाइप बनाओ या बिल्डिंग प्रोडक्शन लाइन. तो आपने क्या किया? प्रोटोटाइप बनाया, फिर उसके बाद आपने ये देखा 8% के लिए कितना सेफ है उसका, राइट? मान लीजिए 8% के लिए सेफ निकलाई है, देन आप प्रोडक्शन लाइन बिल्ड कर सकते हो, राइट? मान लीजिए आपने प्रोडक्शन लाइन यहाँ पे बिल्ड की, और दूसरा ऑप्शन क्या है? एग्जिट कर सकते हो कि आप मान लीजिए नहीं करना है, प्रोडक्शन लाइन आपने एक बार बिल्ड की, फिर आप क्या कर सकते हो? लेट मी जस्ट राइट इट हियर, एन अगेन नेचर. यहां पे आपके पास कितने ऑप्शन आएंगे? अगेन 4. क्यों 4 ऑप्शन? अब आपने देखा था डेमोग्राफिक एरिया कितने थे? डेमोग्राफिक एरिया थे आपके, जस्ट अ मिनट, लेट मी रेफर द क्वेश्चन एज वेल. इफ यू गो टू द क्वेश्चन पेपर बैक, if you see this line, the also certainty, okay, there is also uncertainty over demand which will have a crucial impact on the eventual profit. Currently the best estimate is that the finished product, if available to the 8 to 14 year demographic, has a 50% chance of resulting in profits of what? Profits of either 10 million or 5 million, right? So अब आपके पास 2 डेमोग्राफिक एरिया है, मान लीजिए दोनों में डिमांड हाई है, ओके? आपने देखना 8 to 14 वाला एक ग्रुप है, उसमें आपके 2 आउटपुट हो सकते हैं. क्या क्या हो सकते हैं? 10 और 10 हो सकता है या 5 हो सकता है, दोनों के चांसेस. $10 million और $5 million, और एक है 15 वाला. 15 एज ग्रुप में कितना चांसेस हो सकता है? 14 and 6, राइट? 14 and $6. सो आपके 2 डेमोग्राफिक है, मान लीजिए किसी में हाई हो सकता है, इसमें हाई हो गया, इसमें हाई हो गया, तो एक केस बन जाएगा. इसका ये हाई है, राइट? ये इसका लो है, ये इसका हाई है, ये इसका लो है. तो कितने केसेस बनेंगे? दोनों में हाई हो गया, क्योंकि आपको यू आर इंटरेस्टेड इन फाइनल प्रॉफिट. दोनों में हाई हो गया, एक में हाई है, एक में लो गया, एक में लो, एक में हाई हो गया. तो दिस वे यू विल टेक हाई लो, लो हाई एंड लो लो, और सबका आप पे ऑफ लिखोगे. पे ऑफ का मतलब क्या है? आपका जितना यानी एक्सपेंडिचर हो रहा है. सबसे पहले तो आप वो लिख लो रेवेन्यू कितना आ रहा है. मान लीजिए दोनों हाई है, कितना आएगा? 10 + 14, 10 आ गया प्लस 14 आ गया. आपके कॉस्ट क्या क्या इन्वॉल्व हो रहा है? प्रोटोटाइप का कॉस्ट कितना था? प्रोटोटाइप का कॉस्ट आई थिंक 0.5 था ना, 0.5 मिलियन. आप देख लीजिएगा एक बार, गलत ना हो. लेट मी सी द क्वेश्चन. प्रोटोटाइप कैन मस्ट बी 0.5 मिलियन, यस. उसके बाद और क्या कॉस्ट था आपका? 12, यानी आपने बिल्ड भी कर लिया है प्रोडक्शन लाइन यहाँ पे बनाया, 12 मिलियन हो गया. आपका सेफ्टी टेस्ट का कॉस्ट कितना था? योर सेफ्टी टेस्ट वाज एट आई थिंक 1.5, राइट? लेट मी, इसमें इतना ढूंढने में क्वेश्चन इतना लेंदी है. आई कैन डू वन मोर थिंग, गिव मी 1 second प्लीज. ओके, यस, सेफ्टी टेस्ट कॉस्ट टू $1 million. सेफ्टी टेस्ट कॉस्ट, और उसके बाद आपको फर्दर लॉन्च करना है, राइट? एंड लॉन्च, यू नो, आफ्टर सेफ्टी टेस्ट लॉन्चिंग कॉस्ट वाज 1.5. तो कितना हो गया? 12 + 13, 14, 15. तो -15 ये आपका यहाँ पे आ गया, राइट? सो 24 में ये आपका 9 आ गया. सी व्हाट माय पॉइंट इज, मैंने अभी आपको एक लाइन शो किया है, but same thought you have to, you know, apply here also. So can you see the complexity of this question? कितने सारे cases है, but I want you to, you know, go through this question. इसको start करो, basic से लेके end तक ले जाओ. If you can do that, you should be, you know, you should be at peace कि आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे यूपीएससी का, और आपके 15 to 20 मार्क्स कोई नहीं लेने वाला है as far as the management optional और even statistics optional are concerned. ये होना है. बट बिफोर दैट लेट मी, कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि ओके ये क्या है, ये राइट, ये डिसीजन.
I will I will I will discuss some theory. Okay. So उसको theory को थोड़ा discuss कर देते हैं. Then we will come back to this question again. And that theory is here. Okay. Let me. Okay. So थोड़ा सा theory part. Decision making. What it says. See कोई भी अब see ऐसा नहीं है कि see when you are studying something ऐसे नहीं कि सब डिसीजन मेकिंग सिंपल ट्री बना दिया. नो थोड़ा सा आपको पता भी होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्शन, व्हाट इज द आउटकम, व्हाट इज द प्रेफरेंसेस. सो ए डिसीजन एनी डिसीजन प्रॉब्लम राइट वेदर under certainty or uncertainty consists of three features. What is actions, outcomes and preferences. इसका मीनिंग वही है जो कि जनरल इंग्लिश लैंग्वेज में होता है. एक्शन मीन what are the alternatives you have. Outcome, what can be the possible consequences, and preferences simply describe how the rank. Preferences mean, let's say somebody likes apple over oranges, so that is and this is generally referred by this. Let's say I say X is what it means. This means for me X is at least as good as Y. This language is very, very important. So remember this. So you will remember that any decision making problem will have three things: AOP, action, outcome and preferences. This theory UPSC is not asking, but my understanding is that आपको थोड़ा पता होना चाहिए. Now see, कुछ लोग इसको रिग्रेसली पढ़ते हैं डिसीजन मेकिंग को, यानी अपनी पूरी लाइफ इन्वेस्ट करते हैं. जो लोग somebody who is a student of game theory, right? Game theory में von Neumann and he was a mathematician, right? Von Neumann and Morgenstern. I will not even try to spell Morgenstern. I don't know what is the spelling, but he was an economist. He was a mathematician, wonderful mathematician. Not only mathematician, wonderful mathematician, right? Both of them wrote a book, Game Theory, 1944. And वहाँ पे बहुत rigorously discuss किया गया है उसको. तो उसका तो यानी I am just showing you only say let's say 0.001% part of that. But if UPSC aspirant not required to do all that, but कभी after UPSC you must go in such books. You must understand right what humans have the capacity to do. So they studied decision making very rigorously, and decision making is also part of game theory, or say game theory is part of decision making. And what they said, any assumption about the player's ability to think through decision problem should have two axioms. Axioms means simply क्या होता है, that is completeness axiom and transitive. Axiom का मतलब क्या है, जैसे ज्योमेट्री में आप पढ़ते हो कि एक पॉइंट से बहुत सारी लाइन पास कर सकते हैं. इसका कोई प्रूफ है? कोई प्रूफ नहीं है. नंबर थ्योरी में आप क्या पढ़ते हो, -1 का -1 से प्रोडक्ट करने पे क्या आएगा, 1 आएगा. इसका कोई मैथमेटिशियन प्रूफ दे सकता है? नहीं दे सकता, राइट? इसी तरह इसमें completeness and axiom, these are the foundation. On this foundation we have built this theory. Okay, what the completeness axiom said, that this means argument is complete. Completeness axiom means argument is complete. That is X is at least as, अब तुम्हारा दो चीजें सेलेक्ट करनी है, तो या तो X is as good as Y और Y is as good as at least as. दोनों में से कोई एक चीज होना चाहिए. That means completeness. सपोज आपके मान लो दो ऑप्शन दिए गए, आप वो कंप्लीट ही नहीं है, नहीं आपको ये नहीं पता कि एक्स वाई से गुड है या वाई एक्स से गुड है, तो कंपेयर कैसे होगा? तो वी अज्यूम दैट देयर इज कंप्लीटनेस. ओके. एंड ट्रांजिटिविटी कोई अपने क्लास 12 के मैथमेटिक्स में ही पढ़ा होगा, राइट? व्हाट इट सिंपली सेज, इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी, दैट दिस इंप्लाइज ए इज ग्रेटर देन आई शुड नॉट कॉल इट ग्रेटर, is at least as good as C, right? That implies that is that transitivity. अब completeness और transitivity theorem से आपको क्या मिल जाता है? Once you have these two things, it gives you rigorous foundation for decision making. Okay. So now completeness guarantee that any two can be ranked, right? आप बता सकते हो तो X better है Y से, Y better है X से. And the transitivity guarantees that there will be no contradiction. Now see, transitivity means there is no contradiction. कि आपको पता है कि आपने बोला ना ये क्या, if X is at least as good as Y and Y is at least as good as Z, then that implies X is
at least as good as that. This means transitivity. Lekin there is a paradox. See, I want you to think through this paradox. Very, very, it's very simple and very funny. I will not say funny. I will say, very deep. It is called Condorcet paradox. And see, what is the idea? Idea is this. Let's say there are many individuals who are rational, and who are rational means they follow completeness axiom and transitivity axiom. But if you bring many rational people together, their decision making becomes irrational. OB में जब आप पढ़ते हो ना, जब when you will go into OB, तो वहाँ पे decision making के जो errors हैं, see आप देखो किस तरह maths और humanities connected है. वहाँ पे OB में क्या आप थ्योरी पढ़ रहे हो, errors in decision making. यहाँ पे आप उसको Quamen OM में उसकी mathematical analysis देख रहे हो, right? So what it said कि कभी-कभी लोग indecisive हो सकते हैं. कैसे? Let's say see this case. इसमें क्या हो रहा है? एक player है. There is a player 1 who prefer A to C, strictly prefer. This is not equal. Strictly prefer A to C and C to B, right? And player 2 prefer C to B and B to A, and player 3 prefer B to A. It's very simple, right? तीन चीजें हैं भाई. A का ये preference है, B का ये preference है, C का preference है. ठीक है. Now suppose कीजिए, अब आपको so what player 1 and 3 will say? Player 1 and 3 will say that A is better than C, right? 1 and 3 will also say anything. So, but player 2 will not say. Player 2 के लिए क्या है? C is better than A. लेकिन but player 1 and player 3 के लिए A is better than C. तो player 2 इसके लिए वोट करेंगे. कहेंगे okay, I will prefer A over C. Player 1 and 2 क्या बोलेंगे? Player 1 and 2 बोलेंगे क्या? Just a minute. Player 1 and 2 बोलेंगे C is greater than B and C is right. Player 1 and 2 यहाँ पे right. इसी तरह player 1 and 3 क्या बोलेंगे? They will say B is greater than A, right? B is greater than A, and sorry, 2 and 3, right? 2 and 3. 2 and 3 will say B is greater than A. So can you see? Now 3 of them were rational decision maker. ये आपका तीनों ने उनकी प्रेफरेंसेस थी. Okay, they are complete and they have transitivity, no problem. But when you took their choices and now you have to decide whether you will choose A, B or C, now comes the problem. See, suppose if you choose A, A over C was selected by both player 1 and 3. तो आपने मान लो A choose किया इन तीनों में. Now suppose you have to select between A, B and C. Suppose you say I will choose A. Then here is the problem. A is better than C. That's fine, right? And A is better than C and C is better than B. तो अब इन दोनों के हिसाब से क्या हो जाएगा कि A सबसे बेटर है. लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? थर्ड के अकॉर्डिंगली B आपका A से स्मॉलर है, right? So यहाँ पे यानी in this case the player 2 will say, okay, just hold on. Why are choosing A? I prefer B over A, right? So this is a kind of a paradox. And this, if I can share, this has application in voting theory as well. Voting theory में it has application. So can you see how simple example? Very simple example. It shows that even our assumptions, right, are not valid sometime, and this is called Condorcet paradox. I'm not sure I'm pronouncing it well, but this is what. A related concept is Bodian's as. What it says, it's a story, and it says, there was a donkey who wanted to, there were two heaps. He wanted to eat whether right side or left side heap. He could not decide, and he died of hunger. And this is what they say, Okay, see, notice one more thing. If you observe in CSAT 2023, there was a paragraph, English comprehension paragraph on this. Can you see how these things are connected? That professor, who wrote it, maybe, professor of maybe humanities or science, he knows that this concept is important. So he's trying to test that concept through CSAT, whether you have the ability to understand or not. Right? So this is what. Now this, how to define profit function and all those things, this is important for statistics optional student. Right? Management student optional can skip this. See, management or statistics optional में काफी कुछ overlap है. So I'm designing this such a way that both can use. इसमें भी क्या है? मान लो पे ऑफ फंक्शन सिंपली क्या बोलता है
कि मान लीजिए कोई आपका चॉइसेस है जो कि रियल लाइन पे ड्रॉ सकते हैं, राइट, कोई भी रियल लाइन है, आप कोई भी नंबर चूज कर सकते हो, राइट, एंड दिस नंबर रिप्रेजेंट योर चॉइसेस. ओके, देन प्रेफरेंस रिलेशन, and this xy belongs to both x and y belongs to this set x, then utility of x is greater than utility of y if x is greater than y. सिंपली क्या है, जैसे मान लीजिए आपने कोई आपको मान लो चूज करना था a और b से, कोई चूज करना था, आपने a चूज किया है, तो यदि a चूज किया है तो इसका मतलब a b से यूटिलिटी ग्रेटर है. लेट्स से इसकी यूटिलिटी 10 है, इसकी यूटिलिटी 8 है, तो इफ a इज चूजन ओवर b, then utility of A is greater than utility of B, right? That is what it. ये simple language बना रहा है, right? इसमें कोई क्लास 2 का स्टूडेंट भी समझ जाएगा इसको. ये प्रूफ है, but we will not go in that proof, right? This is statistics option student can go, management option not required. Okay, this thing you must know. See, this thing आपका OB में भी है, rational choice paradigm. When you study OB book, वहाँ भी इसका mention है. तो आप इस तरह भी इसको लिख सकते हो. व्हाट इट सेज कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशनल चॉइस. सो जैसे आप यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि व्हाट आर द अजम्पशन इन एरर्स इन डिसीजन मेकिंग, राइट, रेशनल बाउंडेड रेशनलिटी क्या है, क्वार्टर के वर्क क्या है, तो उन्होंने अपनी पूरी लाइफ स्पेंड की है इस पे. सो व्हाट द रेशनल चॉइस पैराडाइम सेज, द अजम्पशन दैट द प्लेयर इज रेशनल लाइज एट द फाउंडेशन ऑफ व्हाट इज नोन एज रेशनल चॉइस पैराडाइम. इसके क्या 4 अजम्पशन है? अजम्पशन बहुत सिंपल है, राइट, बहुत सिंपल है. ऑल पॉसिबल एक्शंस, एक्शन आप समझते हो, ओके. ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ओके, आपको एक्शन पता होना चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि मुझे एप्पल चूज करना है कि ऑरेंज, उसके आउटकम्स क्या है. एप्पल में चूज करूंगा तो मुझे क्या, यानी ओके, एग्जैक्टली हाउ ईच एक्शन अफेक्ट्स विच आउटकम, एग्जैक्टली हाउ ईच एक्शन अफेक्ट विच आउटकम विल मैटराइज. यानी आपने ये एक्शन लिया तो क्या विच आउटकम विल मैटराइज, ये आपको पता होना चाहिए, ओके. एंड हिज रेशनल प्रेफरेंसेस ओवर आउटकम्स, यानी जो आउटकम्स है, लेट्स से मान लीजिए फॉर ए चाइल्ड यू ट्राइंग टू आइडेंटिफाई अ गुड स्कूल इन सिटी, सो यू मस्ट नो, ओके, इफ आई सेंड माय चाइल्ड टू दिस स्कूल, क्या उसके यानी क्या चेंजेस आएंगे. सो दैट यू कैन रिलेट विद रेशनल प्रेफरेंसेस. वेरी सिंपल अजम्पशंस. सो सी होते ना किसी भी मैथमेटिक्स में, या नॉट ओनली मैथमेटिक्स, इवन ह्यूमैनिटीज. लेट्स से समबडी आस्क व्हाट इज द अजम्पशंस इन लिटरेचर. लिटरेचर में क्या अजम्पशन है? वंस यू नो द वर्ड्स, सी जो पूरा मैथमेटिकल या मैथमेटिक्स रिलेटेड जो साइंसेज हैं, दे आर बिल्ट ऑन नंबर्स, राइट, और जो ह्यूमैनिटीज है वो किस पे बिल्ट है? वो वर्ड्स पे. सो इट इज नॉट टू से कि दैट इसमें ओवरलैप नहीं है, बट दीज आर द एक्सियोम्स. लिटरेचर, हिस्ट्री, उसका जो पहला फाउंडेशन क्या है? फर्स्ट फाउंडेशन इज लैंग्वेज. जब तक लैंग्वेज नहीं है तब तक कुछ नहीं है. और एट द someday you realize that mathematics itself is a language. Okay, now this is fine. ये आप देख लीजिएगा. I'm assuming okay, हाँ, rational man I should tell you. Okay, रेशनल मैन अगेन आपका ओबी में भी काम आएगा और कहीं भी आप मैनेजमेंट में ना. फिर जब आप लिखो ना डेफिनेशन, इस तरह की लिखो, ऐसे नहीं कि लिख दिया कुछ भी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशनल मैन? ए प्लेयर हु हैज रेशनल प्रेफरेंसेस and is rational in that he understands all the aspects of his decision problem and always chooses an option that yields him the highest payoff. This is the keyword from the set of possible actions. See, rationality का मतलब ही क्या है कि you assume that highest payoff. Now somebody will say that humans are not always rational. That's correct. Even Professor Daniel Kahneman का जो work है, prospect theory, Daniel Kahneman, राइट, प्रोस्पेक्ट थ्योरी. आप उसको कभी एनी टाइम मिले तो, नहीं लेक्चर पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट थोड़ा सा गूगल कीजिए. गूगल मत कीजिए. गो टू हिज रियल वर्क एंड ट्राई टू टेक 1 or 2 पैराग्राफ और उसको अपने ओवी के नोट्स में डालिए. यू विल सी कि आपके 1-2 नंबर तो ऐसे ही बढ़ जाएंगे. ओके, सो नाउ कम टू द डिसीजन ट्री. अभी आपके फाउंडेशन है, आपको समझ में आ गया कि ओके क्या मीनिंग है. यानी डिसीजन मेकिंग में एओपी होता है, एक्शन आउटकम प्रेफरेंसेस होते हैं. प्रेफरेंसेस का क्या मीनिंग है, राइट. रेशनल चॉइस पैराडाइम के अजम्पशंस क्या हैं. ओके, ये सब आपको फाउंडेशन बन गया. नाउ कम टू डिसीजन ट्री. इट इज a simple graphical representation for decision problem. Okay, now
एक लॉटरी वर्ड है, लॉटरी एक टेक्निकल वर्ड है, राइट? जितने भी यानी डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम में फील्ड में जो काम लोग करते हैं, दे विल यूज द वर्ड लॉटरी. इट सिंपली मीन्स डिस्क्राइब्स बाय रैंडम पे ऑफ. लेट्स से ये एक लॉटरी का रिप्रेजेंटेशन है. जैसे मान लीजिए कोई प्लेयर है, उसके दो ऑप्शन है, तो वो ऐड करें या स्टेटस को यानी ना करें. और उसके बाद यदि वो आगे इफ यू गो अहेड, तो उसके बाद दो आउटकम यानी 10 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी दिस इज पे ऑफ. योर पे ऑफ इज 10, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.75 है और 0 की 0.25 है, राइट? इसी तरह 10 यहाँ पे दूसरे केस में स्टेटस को वाले में 0.5 है 10 और 0 की. तो दिस इज ए सिंपल लॉटरी, राइट? इसमें क्या है, सिंपल लॉटरी. अभी मान लो मैं इसके फर्दर ब्रांचेस बना दूं, तो वो बन जाएगा आपका कंपाउंड लॉटरी. जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं डिसीजन ट्री प्रॉब्लम पे, दैट इज ए कंपाउंड लॉटरी. रेदर यू मस्ट से कंपाउंडेड लॉटरी. ओके, तो ये आपका सिंपल लॉटरी है. देन ओके, नाउ यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस. सी, वहां पे हमने जैसे व्हेन आई ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम, तो आपको ध्यान है मैंने एक जगह ब्लॉक यूज किया था, एक जगह सर्कल यूज किया था. ब्लॉक मीन्स इसको रिप्रेजेंट करते हैं डी से. यहाँ जहां पे प्लेयर को डिसाइड करना है कि डिसीजन लेना है, लेट्स से यहाँ पे प्लेयर को डिसाइड करना है कि गो अहेड करना है कि स्टेटस को. हमारे वाले केस में पहला केस पे एग्जांपल बनाया था कि प्रोटोटाइप बनाना है कि दूसरा क्या ऑप्शन था, हाँ यानी बिल्ड प्रोडक्शन लाइन बनाना है, राइट? तो यह एग्जिट करना है. 3 ऑप्शन थे उसके स्टार्टिंग में. तो तीनों में से क्या डिसीजन लेना है, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ए स्क्वायर रेक्टेंगल. लेकिन जहाँ पे नेचर की बात है, लेट्स से वंस यू हैव टेकन अ डिसीजन, okay, once you have taken a decision, so in our question what was the, let's say when you have taken a decision to build a prototype, then you have 3 natures, whether it is safe for 8+ student. 3 nature थी ना, तो नेचर आप रिप्रेजेंट करोगे सर्कल से. फिर प्रोफेसर विल लुक फॉर दी नुआंसेस. ऐसे नहीं कि कुछ भी बना दिया, राइट? नो नो, जहां पे ब्लॉक बनना है वहां पे ब्लॉक, दैट इज डिसीजन पॉइंट, दिस इज नोट, दिस इज नेचर. एंड इन अवर क्वेश्चन देयर वर 3 नेचर्स, राइट? 8+ ईयर्स के लिए है, 14+ के लिए है, और अनसेफ है. अनसेफ और उसका जो पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी था, आई थिंक इसका प्रोबेबिलिटी कितना था, 0.65 था, 0.65, 0.3, 0.05, राइट? सो दिस इज व्हाट, नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचर, नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नोट, राइट? First the player takes an action, either go ahead or status quo, that is takes an action. Then condition of the action taken by the player, nature, यानी कि आपने वो डिसाइड कर लिया कि whether you are going ahead or status quo. Then यदि आपने go ahead किया है तो उसके बाद नेचर का रोल आता है, you know, the nature will choose a probability distribution over the outcome 10 and 0. ओके, नेचर क्या है, यहाँ पे आपके 2 ऑप्शन हो सकते हैं, 10 हो सकता है, 0 हो सकता है. इसकी प्रोबेबिलिटी 0.75 है, इसकी 0.2 है, राइट? So such notes are called nature. Fine. Very important point. इसके बिना डिसीजन मेकिंग में क्वेश्चन में यानी सी ये लॉजिकल नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन है इसको. और ये सी लॉजिकल भी है. क्यों? आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे मुझे डिसीजन लेना है, कहाँ पे नेचर पॉइंट से मैंने. दैट इज फाइन, ये सब आप पढ़ लेना. नाउ माय आइडिया इज टू गो बैक टू द क्वेश्चन एज अर्ली एज पॉसिबल. सी ये सिंपल एक लॉटरी का दिखाया है, ये नहीं है, कुछ नहीं है, वेटेड एवरेज है, राइट? इसमें क्या है आपका जो ये सिंपल और सिर्फ कंपाउंडेड लॉटरी है. हाँ, इसमें एक चीज और नोटिस कीजिए, सिंपल वर्ड. लेट्स से यहाँ पे ये सिंपल लॉटरी था, तो यहाँ पे कितना वैल्यू था, 0.75. तो उसी को हमने कंपाउंडेड बना दिया है. तो यहाँ पे हमने क्या बोला, नेचर में हमने एक और स्टेप ज्वाइन कर दिया. सो कैन यू सी प्रॉब्लम सेम ही है. हाउ यू विल आइडेंटिफाई दैट? If you take 0.625 into 0.9 plus, okay, 0 plus 0 into 0.1 plus 0.375 into 0.5 plus 0.5 into 0 तो 0.5 हो जाएगा, राइट? 0.5 into 0, it will be equal to 0.75, राइट? इट विल बी इक्वल टू, आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा. व्हाट माय पॉइंट इज कि यहाँ पे आपने इसको फर्दर डिवाइड किया, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी आपकी चेंज नहीं होगी, राइट? आपने यहाँ पे ये फर्दर डिवाइड हो रही है. यहाँ पे 0.6, ये 0.75 यहाँ पे डिवाइड हो गया है, 0.625 इधर चला गया, इतना 0.58, 0.98, और ये नीचे वाला तो सेम है, नीचे वाला तो दोनों में सेम है. So this, you know, coherence should always be maintained. Fine. So now you understand difference between
कंपाउंडेड एंड कंटिन्यूस, सॉरी कंपाउंडेड एंड सिंपल लॉटरीज। आई वांट टू, एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो सिंपल ही है, वेटेड एवरेज है ये। नाउ आई वांट टू डिस्कस विद यू एक फेमस वो है, ओके ये कंसेप्ट भी आपको जानना चाहिए। लेट्स से अभी हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी पढ़ रहे हैं। एक्सपेक्टेड यूटिलिटी पे क्वेश्चन न्यूमेरिकल यूपीएससी ने आई थिंक ऑलमोस्ट 3-4 बार पूछा है। एक्सपेक्टेड यूटिलिटी कुछ नहीं है, वेटेड एवरेज है। आपका बेस में भी लगता है, बेस थ्योरम में, राइट। आपके जो बेस थ्योरम के जितनी प्रॉब्लम है वो आप वेटेड एवरेज से कर सकते हो, राइट। इनफैक्ट एट वन टाइम यू रियलाइज कि बेस थ्योरम और एक्सपेक्टेड यूटिलिटी थ्योरम में कोई डिफरेंस ही नहीं है, राइट। सो एंड सी who led this foundation again? Expected utility theorem foundation was led by von Neumann and Morgenstern, again that game theory book. The point I want to make is this. Let's say अभी जो हमने सिंपल उसमें डिस्कस कर रहे थे, राइट, वो ट्री वाला, उसमें हम मान लेते हैं कि कुछ उसके 4 ऑप्शन थे प्लेयर के पास, और उसने बोला कि 10 इज ग्रेटर देन 9 इज ग्रेटर देन 0 इज इक्वल टू -1। और ये बात लॉजिकल है भाई, कोई भी पर्सन है, they will select 10 over 9, 0 over, okay. Now what we said that we can also represent them with the utility, right? Let's say now I'm saying utility of 10 is equal to 10, okay, that's fine, and utility of 9 is equal to 9, and utility of 0 is equal to 0, and utility of -1 is equal to -8। यदि अब आपको इनको ऑर्डरिंग करना हो तब भी क्या करोगे, सेम ही रहेगा, 10 is greater than 9 is greater than 0 is greater than -8, okay। ये केस 1 था, ये केस 1 था, ये केस 2 था। तो कैन यू सी ऑर्डरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है व्हेन यू हैव असाइंड यूटिलिटी टू योर चॉइसेस। 10 को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट what can happen, your decision can change. How decision can change? Let's say you are looking for, see what my point is कि when you apply expected utility यानी weighted average जब लेते हो तो आपके जो डिसीजन है चेंज हो जाते हैं। ऑर्डरिंग ही मैटर नहीं करेगा, यानी ऐसा नहीं कि एक्सपेक्टेड यूटिलिटी थ्योरम के केस में इसमें और इसमें सेम ही डिसीजन रहेगा, नो नो नो। व्हाई? लेट्स से आपने यू आर गिविंग कितना वेट दे, लेट्स से यू आर गिविंग, लेट मी जस्ट शो यू, ओके, 0.75 and 0.25, 0.75 and 0.25। आपने कोई आपके पास 4 ऑप्शन थे, आपने ऑर्डरिंग तो ठीक है, 10 इज ग्रेटर देन 9 इज ग्रेटर देन 0 इज, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, आप अपने वेट अप्लाई कर रहे हो, तो आपने इसका 9 into 75 एंड माइनस, तो आप ये कैलकुलेट करो, 9 into 0.75 minus 0.25, ओके, कितना आएगा ये हो गया 45, राइट, 5, 7, 6.75, और यहाँ पे ओके 6 -1 minus 0.25, ओके 6.25, सो ठीक है, इसमें से कितना आ गया आंसर आपका, फिर 6.5 आ गया, ओके, ये 6.5 आ गया। यदि आपने इसको 0.75 और इसको 0.25 रेट दिया है, इस केस में आपने क्या किया था, सेम, सब कुछ सेम था, बस -1 की यूटिलिटी को आपने कितना, -1 को उसको यूटिलिटी कितने असाइन कर दिया, -8। सो now if you apply the same formula in this case, let's say you give any same 9 में भी आप कितना मल्टीप्लाई कर रहे हो, 0.75, और लास्ट वाला केस उसमें भी प्लस -8 into 0.25, तो यहाँ पे कितना वैल्यू आ जाएगा आपका, 4.75। यू कैन कैलकुलेट, राइट, आप कैलकुलेट करके देख लेना, यहाँ पे 4.75 आ रहा है। सो व्हाट माय पॉइंट इज सेइंग टू से, जब पहले वाले केस में
पहले वाले केस में आपका जब आपने टी वाला केस लिया था 10, 9, 0 एंड -1, उस वाले केस में आप क्या चूज कर रहे थे? आपका सी आपका जो रियल डिसीजन ट्री था ये था, या तो आपको गो अहेड करना था, या तो आपको गो अहेड चूज करना था, या स्टेटस को चूज करना था। तो जब फर्स्ट केस में यानी इस वाले केस में आपने क्या यूज किया? यू चूज स्टेटस को, दैट मीन्स ये वाला। क्यों? क्योंकि आपकी वैल्यू कितनी आ रही थी? 5 आ रही थी। जो बट व्हेन यू चेंज these numbers with what? With utility and कि मेंटेनिंग द ऑर्डर आपने मेंटेन किया, लेकिन सिंपली क्या है, -1 यूटिलिटी को आपने -8 बना दिया, तो आपने एक तरीके से कितना वेट चेंज कर दिया। So then you realize कि in that case my value is coming 4.75 which is less than 5. तो आप क्या चूज करोगे? You will choose sorry yes अभी ओके एक प्रॉब्लम हो गया, नहीं सब कुछ सही है। क्या प्रॉब्लम है? जब ये वाला केस था तो आपने देखा कि स्टेटस को के केस में आ रहा था 5 एंड एक्सपेक्टेड यूटिलिटी इन द केस ऑफ गो एट कितना आ रहा था? अभी हमने चेक किया था, जो मैं कैलकुलेशन की थी 6.5। तो आपने इस वाले केस में क्या चूज किया? गो एट चूज किया। नाउ व्हेन यू चेंज दीज नंबर्स विद यूटिलिटी, तो आपने वैल्यू कैलकुलेट की, कितना आया आपका? 4.75, ओके, एंड विच इज लेस देन 5, which is less than 5. So what you will choose? Now you will choose S. Yani now you will choose status quo because 5 is more than 4.75. Can you see कि आपने ऑर्डरिंग तो सेम मेंटेन किया है, लेकिन उसकी जो वैल्यूज है उसको चेंज कर दिया। तो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी थ्योरम में ये दिस थिंग इज नॉट एप्लीकेबल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मे बी आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन इट वेरी फाइनली, बट आई हैव कन्वेड यू द आइडिया। इफ यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया, यदि मान लो किसी चाइल्ड को बताना हो तो उसको बोलो कि भाई इट्स सिंपल 4 3 2 1, ठीक है, 4 3 2 1 ठीक है, यानी 4 इज ग्रेटर देन 3 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन, ये ठीक है, और इसके बेसिस पे आपको डिसीजन लगा रहे हो तो ठीक है। बट व्हेन यू कम टू द एक्सपेक्टेड यूटिलिटी पैराडाइम, उसमें आपने केवल ऑर्डरिंग से काम नहीं चलेगा। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मान लीजिए मैं 4 को रिप्लेस कर देता हूँ 5 से, नहीं 4 को रिप्लेस कर देता हूँ 100 से एंड 3 को 99 से और 98 एंड 97, तब भी मेरा सेम ही डिसीजन रहेगा। नो नो नो, उसमें क्योंकि आप उसका वेटेड एवरेज ले रहे हो, उसकी जो वैल्यूज हैं, राइट। और हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि सारे पे इक्वल वेट हो। मान लीजिए आपने किसी पे 99 पे ज्यादा वेट दे दिया, 98 पे कम वेट दिया है, तो दैट विल आल्सो डिपेंड अपॉन द वेट्स। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी सिंपल कंसेप्ट, यानी है कुछ नहीं है, सिंपल वेटेड एवरेज का कंसेप्ट है, लेकिन हाउ द how you read it theoretically, that in expected utility paradigm, not only the order but the rank, not only the ranking but the intensity also matter. So what it's saying, the reason behind the reversal of the choice has important consequences. When we choose to use the expected payoff, then this is the keyword, intensity of the preferences matter. That means कि जो वैल्यू है, यानी 5 4 3, आप बोलना कि 5 इज ग्रेटर देन 3 इज ग्रेटर देन 1, ये केस में लग रहा है, तो इस वाले केस में भी 100 इज ग्रेटर देन 99 इज ग्रेटर देन 98 इज ग्रेटर देन 97, यानी जो डिसीजन मेकिंग मैं यहाँ से बना रहा हूँ, सेम डिसीजन आई विल गेट फ्रॉम यूजिंग दिस नंबर। No, that will not happen because intensity also matter. Intensity with this values. Okay, so I took some time, but this is important. And how you will write say it theoretically? See, आपके क्वाइम में पूछा है, no, what do you आपका सी क्वाइम और ओबी में दोनों में है, what is ordinal preferences, what is cardinal. So ordinal, so what this is, this argument shows that unlike payoff over certain outcomes which is meant to represent ordinal preferences, okay, the expected payoff represent involves a cardinal ranking. See, what is the difference between ordinal? Ordinal means जैसे आप बोलते हैं yes or no, right? This is ordinal. When you say cardinal, उसके वैल्यू भी लेते हो। So in cardinal what happens? The value matter as much order. यानी order important नहीं है, उसकी जो वैल्यू है, see x is greater than y is greater than z, ये
दिस विल बी सेम इन ऑर्डिनल एंड कार्डिनल, बट उसकी जो वैल्यू है दैट विल मैटर ओनली इन कार्डिनल रैंक। ठीक है, आपका एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, फाइनेंस में पूछा है, राइट? वो पूछा कि फाइनेंस में व्हाट इज रिस्क अवर्स, रिस्क न्यूट्रल। अब आप लिख के तो कोई भी वहां पे कुछ भी आ जाएगा, क्या है लिख दो रिस्क, बट लेट्स से दिस इज 10 मार्क क्वेश्चन, how can you aspire 6 to 7.6.5 to 7 marks in this question? Yes, if you give the very sound examples, if you show them your thought, so I would suggest you try to write this example. इसको ना इस तरह बिल्कुल मगअप कर लेना, अपने नोट्स में डाल लेना, और इसको वहां पे आप छाप दोगे तो आई एम प्रीटी श्योर, और इसको आप 2-3 मिनट में छाप सकते हो, राइट? एंड यू विल गेट गुड मार्क्स. How you define risk attitude? There are 3 types of risk attitude: risk averse, risk neutral, and risk seeker. So let us take an example. आपके पास 3 x is equal to 1 to 9. उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? वन केस है 7/12 0 5.2, सेकंड केस में 0 1 0. आप देखो एक्सपेक्टेड वैल्यू लेके देखो, दोनों केस में सेम आएगा. पहले इस वाले केस में तो सिंपल 9 into 1 आ गया, क्योंकि बाकी दोनों 0 0 है. इस वाले केस में क्या आ जाएगा? आप देख लेना मल्टीप्लाई करके, राइट? 7/3 प्लस 5 into 4/3, तो कितना हो गया? 20 प्लस 7/9. ठीक है, तो सी अब ये आपने नंबर्स ले लिया, अब इसको मगअप कर लेना, राइट? सो व्हाट इज हैपनिंग इन P1 लॉटरी? इस P1 लॉटरी में क्या हो रहा है कि रेंडमाइज कर रहा है किसके बीच में? किसको? 4 और 16 को रेंडमाइज कर रहा है किसके बीच में? विद द प्रोबेबिलिटीज ऑफ 7/12 एंड 5/12. ओके, x2 तो है नहीं, सी x2 तो 0 है इस वाले केस में, तो यानी 4 क्या है? 4 को किसके बीच में रेंडमाइज कर रहा है? 7.12, और 16 को 5/12. ठीक है, एंड P2 लॉटरी पिक्स 9 फॉर श्योर, ये 1 है, राइट? 9 फॉर श्योर. बस इसी एग्जांपल को लेके आप वहां पे दिखा सकते हो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिस्क अवर्स, रिस्क न्यूट्रल एंड रिस्क सीकर. जब दोनों इक्वल हैं, रिस्क न्यूट्रल मींस इफ द प्लेयर इज विलिंग, कीप mark the important word, if the player is willing to exchange any share payout with any lottery, sorry, any shore, if player is willing to exchange any shore payout with any lottery that promises the same expected. So आपके दो कीवर्ड क्या है कि एक केस में आपको श्योर मिल रहा है, that is 9, and you are exchanging with the same expected monetary output, that is 7/12 into 4 plus 5/12 into 16. तो उस केस में भी 9 आ रहा है, तो देन इट इज रिस्क न्यूट्रल. ओके, रिस्क अवर्स में क्या होगा? ही विल नॉट एक्सचेंज, राइट? द प्लेयर इज नॉट विलिंग. सी द कीवर्ड हियर इज नथिंग बट द नॉट विलिंग टू एक्सचेंज शेयर, श्योर आउटपुट, श्योर पे आउट विद एनी नॉन डिजेनरेटिव. अभी विल नॉट गो इनटू दैट, इसको आप भूल जाओ. लॉटरी दैट प्रोमिसेस द सेम एक्सपेक्टेड मॉनेटरी आउटपुट. तो रिस्क अवेयर से उसको पता है कि मुझे वहां पे 9 मिल ही जाएगा, कहेगा ठीक है, मुझे वहां पे यानी P1 वाले केस में उसको एक्सपेक्टेड वैल्यू मिले, वो कहेगा नो, मुझे श्योर मिल रहा है 9, आई विल टेक श्योर 9. रिस्क लविंग क्या है? रिस्क लविंग, यू मस्ट यूज द वर्ड सीकर. इफ द प्लेयर स्ट्रिक्टली प्रेफर एनी लॉटरी दैट प्रेफर द सेम एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू, देन इट इज कॉल्ड रिस्क. आप इस एग्जाम्पल को वहां पे लिख के आओ, तो आई एम श्योर कि यू विल गेट गुड मार्क्स. इस तरह नंबर लेके, और एक डायग्राम भी बना देना. डायग्राम सी आपका, आप देखिएगा, दे हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन ट्वाइस, और सिंपल है, फाइनेंस में आता है, राइट? 10 मार्कर है, आप सही से प्रैक्टिस करके 2-3 मिनट में आप आंसर कर दोगे. ये डायग्राम बना देना. ये रिस्क न्यूट्रल, रिस्क, ओके, यूटिलिटी, रिस्क. ओके, ये तो न्यूट्रल हो गया. रिस्क सीकर किस वाले केस में आएगा? रिस्क सीकर ये वाला, राइट? रिस्क अवर्स, ओके, रिस्क अवर्स, नो, राइट, ओके, ठीक है. आई थिंक देख लेना, मेरा माइंड बराबर काम नहीं कर रहा, इतना सारा हो गया है वैसे, ठीक है. ये डायग्राम बना के आना, आप वो ऑर्डर देख लेना. ओके, नाउ आई वांट टू डिस्कस दिस वेरी ब्यूटीफुल पैराडॉक्स. सी इफ यू अंडरस्टैंड दिस, ये लास्ट है, फिर देन विल मूव इनटू दैट न्यूमेरिकल. क्या बोल रहा है इसमें? एक पैराडॉक्स है, बर्नौलीज मेंशन्ड दिस पैराडॉक्स. सिंपल क्वेश्चन क्या है? इस तरह क्वेश्चन है, लेट्स से यू आर बैटिंग ऑन
कि आपको टेल मिलना है, फर्स्ट यू आर वेटिंग फॉर फर्स्ट टेल। तो आप जानते हो टेल फर्स्ट, और कॉइन के यानी एक अनबाइस्ड कॉइन है, हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू टेल इज इक्वल टू हाफ। और आप बैट कर रहे हो, मान लीजिए आपका फर्स्ट टाइम में टेल आ गया, तो आपको कितना मिलेगा? $1 मिलेगा। मान लो नहीं आया तो हर एक नेक्स्ट पॉट में उसकी वैल्यू डबल हो जाएगी। यहाँ पे कितना मिलेगा? $2 मिलेगा, यहाँ पे $4 मिलेगा, यहाँ पे $8, यानी आप समझ गया राइट, इस तरह। तो सी यू नो द प्रोबेबिलिटी, यू विल से कि ओके ऐसा भी एक केस है कि प्रोबेबिलिटी टिल इनफाइनाइट टाइम बाद आया राइट, तो दैट इन दैट केस यू विल बी वेरी वेरी रिच। कभी ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट टाइम पे आ जाए, देन यू विल गेट ओनली $1। लेट्स से सेकंड टाइम में आया तो यू विल गेट व्हाट? सेकंड में कितना मिलेगा? $2 राइट। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है उसके आने की? 1/2 into 1/2 राइट, 1/4। इस तरह पहले केस में कितनी प्रोबेबिलिटी है टेल आने की? ठीक, पहले केस में कितना है? प्रोबेबिलिटी और हेड और टेल दोनों के आने की हाफ हाफ है, तो फर्स्ट केस में हाफ हो गया। सेकंड केस में टेल आया, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? सेकंड केस में टेल आया तो इसका मतलब फर्स्ट केस में हेड आया, तभी तो आपको सेकंड पोजीशन तक जाओगे। दैट मींस ये वाला केस होगा हेड और टेल, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी हाफ है, इसकी प्रोबेबिलिटी भी हाफ है, तो 1/4 हो जाएगा। मान लीजिए थर्ड केस है कि दोनों केस में हेड आया, यहाँ पे टेल आया, तो यू अंडरस्टैंड, यहाँ पे भी हाफ, यहाँ पे भी हाफ, यहाँ पे भी हाफ। तो कैन यू सी द प्रोबेबिलिटीज क्या है? वो 1/2 के रेशियो से कम होते जा रहे हैं। ओके, सो व्हाट द बर्नौली सेड, सेंट पीटर, यू नो बर्नौली वाले, यानी आपने क्वाम में जो पढ़ते हो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, 1738 मैथमेटिशियन, ही गिव दिस पैराडॉक्स। व्हाट ही सेड, नाउ आप इसके एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। आपको गेम समझ में आ गया राइट, यू कैन रीड इट। तो आप इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, तो आप आइडेंटिफाई करो कि एक्सपेक्टेड वैल्यू इसकी है कितना? इन्फिनिटी। नाउ दिस इज यू नो, तो बर्नौली आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मान लो किसी नॉर्मल पर्सन को पूछा जाए कि इस गेम पे बैट लगाओ, कि जनरली सी समबडी आस्क्स मी, आई विल नॉट बैट मोर देन ₹2, क्योंकि मुझे पता है कि फर्स्ट केस में नहीं आया, आ गया नहीं आया तो मैं ज्यादा कितना लकी होऊंगा, सेकंड केस में मुझे यानी सी मान लो मैंने सी आई विल नॉट बैट इवन मोर देन ₹1, मुझे पता है कि फर्स्ट चांस में हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है। मान लो फर्स्ट टेल में बहुत लकी रहा, मैं पहले में हेड आया, सेकंड में तो टेल मुझे लगता है आ ही जाएगा। ओके, तो इस केस में मुझे कितना मिल सकता है? यदि सेकंड में आया तो आई विल गेट ₹2। तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा? मैंने टू एंटर दिस बैट यू हैव टू इन्वेस्ट समथिंग, सो लेट्स से आई इन्वेस्टेड ₹1, सो माय पे ऑफ विल बी 2 - 1। सो you got the sense कि इसमें ज्यादा कोई प्रॉफिट होने वाला नहीं है if you are betting, but when you calculate the expected value of this game, वो आ रहा है infinity. So one only ask this question कि what is happening, you know, when you use all this mathematics, you are getting 1000, you know, infinity value, expected value, and when you see in the real life, nobody will invest on this game. So then he went to the crux of the matter. And what he said, okay, what he said before I tell you, you must also know how you are getting infinity expected value. For that, you may please, you know, read this thing. Simple है, यानी उसको मल्टीप्लाई करना है जो आपके जो वेट्स हैं उसकी प्रोबेबिलिटी से। The probability that the first tail occurs on the k toss is equal to the probability of the head occurring on the k minus tail and the tail appearing on the first. सिंपल सी बात है। See, आप मान लो आप बोल रहे हो कि मेरा k टाइम में टेल आए राइट, दिस आई एम अज्यूमिंग, बाकी सब में क्या अज्यूम कर रहे हो? हेड आ गया राइट, हेड आ गया, और हर एक की प्रोबेबिलिटी कितना है? हाफ हाफ हाफ, यानी आपका यानी के टाइम में टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/half पावर के, बिकॉज k - 1 टाइम्स क्या है आपका? हेड, एंड उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है हर टाइम? हाफ हाफ हाफ, और जो के टाइम है उसमें प्रोबेबिलिटी क्या है? हाफ। तो यू विल गेट दिस इज द प्रोबेबिलिटी, बिकॉज एट एनी गिवन टॉस द प्रोबेबिलिटी ऑफ any side coming is up to half. Okay, you win $1 with probability half. $1 की probability win करने की कितनी? हाफ है। $2 की probability कितनी है? 1/4. ओके, सी $2 कब विन करोगे? सेकंड टाइम में। सेकंड टाइम का मतलब फर्स्ट में हेड आया, सेकंड में टेल आया, वो उसका मीनिंग क्या है? प्रोबेबिलिटी कितना हो गया? 1/4 राइट। सो एंड सो ऑन। सो the expected value of this lottery is this thing. ये फॉर्मूला देखो, ये कैसे आया?
कुछ नहीं, आप यानी 1 से लेकर इन्फिनिटी तक कर रहे हो उसको, राइट। हर एक की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2 के, जैसा हमने देखा ना, यदि के टाइम में मिला आपको मिला है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2 के। और आपका आप कितना विन करोगे, आपको पता है हर बार वो डबल होता जा रहा है। फर्स्ट टाइम में 1 था, फिर 2 था, फिर 3 था, राइट। 4 टाइम में कितना हो गया, सॉरी 2, 4, 8, so this is equal to what, 2 to the power 3, and this is 4th टाइम, नहीं 4th नंबर है ना, तो आपको वहां से आप निकाल सकते हो कि यानी के टाइम में कितना होगा, 2 की पावर k-1। यहाँ पे 3rd नंबर है ये, तो यहाँ पे कितना है, 2 की पावर 2। सो ये आपकी वैल्यू आ गई। तो आप देखो इसमें क्या हो रहा है, 1/2 की पावर k और ये 2 की पावर k into 2 to the -1, तो दोनों कैंसिल हो गया, तो सिंपल क्या बचा, कांस्टेंट बचा, एंड विच इज कैरिंग ओवर टू इन्फिनिटी। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। तो मैथमेटिकली आप देख रहे हो उसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है। वो सिंपल सी इन्फिनिटी क्यों आ रही है, क्योंकि एक कभी ना कभी ऐसा तो हो ही सकता है ना कि यू आर गेटिंग हेड और कभी टेल आ गया और वो आएगा तो उसकी, कैन यू इमेजिन उसकी वैल्यू कितनी होगी। लेट्स से टेल केम आफ्टर 100 टर्न, राइट, so can you imagine this value? And see, this concept is also related to your normal distribution. When you say the fat tails ये normal distribution है। See, fat tails का is an important concept. Fat tails का मतलब क्या है कि generally हम क्या assume करते हैं, normal distribution में tails are thin, but fat tails means कि जो outliers थे, we assume that we were underestimating the probability of outliers. So reality में क्या होता है, normal distribution have fat tails. See, let me draw it like this. Let's say this is your normal distribution. Okay, sorry, ये यहाँ पे इस तरह, ये हमारा जनरली हम अज्यूम करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एंड दिस रेड वन इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद फैट टेल्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आउटलायर्स है, आप देख रहे हो ना, जो आउटलायर्स है, नहीं आउटलायर, व्हाट इज आउटलायर्स, आउटलायर्स ये है ना, राइट, इधर आउटलायर्स। तो under the blue curve we were underestimating their probability, but in reality their probability is more. So if you remember the book by Nassim Taleb, The Black Swan, he made this point. Okay, so that we underestimate outliers, we underestimate the fat tails of the normal distribution. और जिन लोगों को पता है, finance में वो on the basis of this knowing the fat tails, they make a lot of money. एंड फिर जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होती है, फिर वो फैट टेल नॉर्मलाइज हो जाता है। फिर मान लो किसी ने स्टार्ट किया था ट्रेडिंग ऑन द बेसिस ऑफ दिस फैट टेल फिनोमेना, दे स्टार्टेड ट्रेडिंग इन 1980, तो 1980 से 1985 तक उन्होंने मनी बनाया। अब वो इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंच गई, राइट, तो दैट उसका उस इन्फॉर्मेशन का कोई, दैट इन्फॉर्मेशन बिकम सिमेट्रिक, राइट, इन्फॉर्मेशन सिमेट्री हो गया। सो दिस इज व्हाट, सो नाउ द Now coming back to this question कि infinity value है, लेकिन real life में nobody will bet more than few pennies on this bet. So then Bernoulli explained the trade-off. What the Bernoulli said, when Bernoulli presented this, it was very clear no reasonable person will pay more than a few dollars to play this lottery. So the question is, where is the paradox? That's why it is called St. Petersburg paradox, because somebody maybe somebody asked in St. Petersburg. But Bernoulli suggested a few answers, one being that the decreasing marginal payoff for money. Okay, यदि इनको concave payoff function over money, which is basically risk aversion. यदि मान लो आपको ये नहीं भी समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। Okay, what it simply says कि risk aversion का मीनिंग क्या है कि we will not assume कि, यानी जनरली आप नहीं सोचोगे ना कि मेरे को 100 टाइम के बाद टेल मिलेगा, आप उतना रिस्क नहीं लोगे। तो दैट इज एनीवन विल अंडरस्टैंड। जब आप इसको व्हेन यू रिप्रेजेंटेड थ्रू कॉन्केव फंक्शन, इन इकोनॉमिक्स आल्सो यूज यूटिलिटी कर्व, सो दैट इज आल्सो सेम, रिप्रेजेंटिंग योर रिस्क एवर्जन, एंड इट आल्सो मीन्स डिक्रीजिंग मार्जिनल पे ऑफ फॉर मनी। ओके, see what is decreasing marginal payoff for money, what it means कि मान लीजिए आपने suppose is hungry, एक रोटी खाया, ठीक है, यूटिलिटी मिला, 2 रोटी खाया, यूटिलिटी मिला, आफ्टर दैट 4-5 रोटी, इज देयर यूटिलिटी, it is a trouble, it is a pain, right? So that is what, okay, but here this line you must understand, Bernoulli correctly anticipated that the value of this lottery should not be measured in the expected monetary value. See, अभी हम लोग क्या सोच रहे हैं
कि ओके मुझे पहले में दो के चांस है, राइट, सेकंड ट्रायल में 4 मिल सकता है, उसमें फिर 4 मिल सकता है, फिर 8 मिल सकता है, फिर 16 मिल सकता है। तो हम ये मॉनिटरी वैल्यूज है, और प्रोबेबिलिटीज क्या है? प्रोबेबिलिटीज है हाफ, 1/4, 1/8, 1/16, like that. Okay. So what he said, we should not be measured the expected monetary value, no, instead the monetary value of the expected payoff. See, this is a difference. आप समझ रहे हो क्या मीनिंग है? हम लोग क्या सोचे कि इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने, जब हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाली थी, दैट्स व्हाई इट बिकेम इन्फिनिटी. No, he said no, do not think like that. Okay, because people have risk aversion. ये जो लास्ट वाली जो वैल्यू है 2t, let's say 2t power 100, इतना nobody will take that much of risk. Okay, so what he said, instead we should look for monetary value of the expected payoff. कि जो हमारे जो expected payoff है, right? ये हमारा expected payoff है half. ये हमारा expected payoff है कितना? 1/2, right? यहाँ पे भी यानी सब में expected payoff क्या है? half है, right? इसकी मॉनिटरी वैल्यू देखना है, then you apply the risk aversion, then you will say okay, then you will say कि okay हाफ ही हाफ तो मिल रहा है, कि यानी हाफ ऑफ कब तक कैरी होगा. Okay, so wonderful question. This thing you must know. Now we will go back to our decision making problem. इसमें हमने यहाँ पे बात की है your payoff, sorry, discounted cash flow, कि आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको, right? See, do not worry about this language which we have used. You have to condition your mind for this. See, generally MBA, suppose somebody has good foundation mathematics हो तो ये तो MBA schools में आजकल क्या हो रहा है, mainly dance or parties हो रही है, right? They do not get that foundation. So try to tune your mind to some rigor, and try to show that rigor in UPSC. So see, UPSC is a very I would say very wonderful examination. वहाँ पे बेस्ट प्रोफेसर आते हैं, वो आपके क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं, तो उनको वो दिखाओ अपनी लर्निंग. नाउ डोंट वरी, now we are coming after a break, and I believe you still remember this question, and you still remember the structure we made. So now we will take that. Now with this foundation, even the aspirant who are studying decision making first time, they should be able to understand it. Here, I have already solved, and I have already showed you how to make the structure. Now I will explain you this decision tree. अब ये मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखा दिया, and आपको प्रॉब्लम यहाँ पे मेरे लिए when I draw the structure on that green board just 15-20 minutes back, तो वो naturally है, because I have solved maybe 100-200 problems like this. आपके लिए UPSC के लिए even if you solved 8 to 10 problems, तो ये भी UPSC के लिए काम workable condition में आप आ जाओगे. Right. So let's see. Let's start. हमारे पास क्या क्या ऑप्शन थे? Again, see, now you understand the meaning of this square. हमारे पास 3 ऑप्शन थे, या तो बिल्ड प्रोटोटाइप करो, या बिल्डिंग प्रोडक्शन लाइन एंड देन प्रोटोटाइप, या फिर आप एग्जिट कर दो, यानी कुछ करो नहीं. दैट इज वन मोर ऑप्शन. तो एग्जिट किया तो ठीक है, आपने प्रोटोटाइप बनाया, फिर आपके पास क्या था, देन यू डिड सेफ्टी टेस्ट, राइट? तो उसमें 3 केसेस थे, 8 प्लस 11 प्लस 8. आपकी तीनों की प्रोबेबिलिटीज पता है, 0.65, 0.3, 0.05. सी इन एग्जामिनेशन आप क्या करो, इतना टाइम नहीं मिलेगा अंडरस्टैंड, तो वहाँ पे आप कीवर्ड बनाओ, राइट? प्रोटो, राइट? बिल्ड, सुनिए यहाँ पे प्रोडक्शन लाइन लिख सकते हो, बस इस तरह करके. ओके, देन ये सब ठीक है, लेकिन आपका जो लॉजिक है, जो ये सब प्रोफेसर विल नॉट वरी अबाउट कि क्या पहले, आपका जो लॉजिक है वो नहीं मिस होना चाहिए. मान लीजिए आपका सेफ आया 8 प्लस एज के लिए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितना है, 6.65. देन यू विल गो फॉर बिल्डिंग प्रोडक्शन लाइन. सो इस वाले केस में क्या कर रहे हो, प्रोटोटाइप बना रहे हो. प्रोटोटाइप की कॉस्ट कितनी थी, 0.5. इस वाले केस में आप क्या कर रहे हो, पहले प्रोडक्शन लाइन बना रहे हो और फिर प्रोटोटाइप बना रहे हो, राइट? और आपको पता है प्रोडक्शन लाइन बनाने के बाद प्रोटोटाइप बनाने में कुछ कॉस्ट है नहीं, लेकिन प्रोडक्शन लाइन की कॉस्ट कितनी थी, $12 मिलियन, राइट? सो ये थोड़ा कट रहा है क्या, लेट मी जस्ट रिपोर्ट देखता हूँ. ये हाँ अब ठीक है, ओके ठीक है, चलिए. उसके बाद अपने वाले सेफ है, देन यू कैन गो फॉर बिल्डिंग प्रोडक्शन लाइन और देन यू कैन एग्जिट. आपके पास अगेन 2 ऑप्शन है. ये डिसीजन पॉइंट है कि आप इधर यू वांट टू टेक प्रोडक्शन लाइन और यू एग्जिट. देन suppose you build production line, then you will have 4 cases. Why 4 cases? We saw there were 2 demographic group, 8 to 14 or
15 प्लस वाला, राइट, 14 प्लस वाला, उसमें भी दो यानी ऑप्शन थे कि आपको, आपने देखा था ना 8 to 14 में भी आपके कितना था, 10 मिलियन और 14 मिलियन, 6 मिलियन और कुछ इस तरह का था. लेट मी रीड द नंबर. डेमोग्राफिक ग्रुप में 14 वाले में चांस था 10 और 5 मिलियन का, और दूसरे वाले में चांस था 14 और 6 मिलियन का, राइट. तो वही आपने यहाँ पे लिख लिया है. ये 0.25 है. हर एक का प्रोबेबिलिटी क्या है, वी अज्यूम दे आर इंडिपेंडेंट. ओके, नाउ सी, आपका जो डिसीजन ट्री की जो थॉट प्रोसेस होती है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डायनेमिक प्रोग्रामिंग और बैक इंडक्शन. सी, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, अब लीनियर प्रोग्रामिंग तो आपके सिलेबस में है, राइट. डायनेमिक प्रोग्रामिंग एंड और बैकवर्ड इंडक्शन. बैकवर्ड इंडक्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैकवर्ड इंडक्शन? वही जो हम लोग अभी कर रहे हैं. बैकवर्ड हम लोग आएंगे एंड वहां से हम उसको, सो आपका कॉस्ट कितना था, फिर आपका पहले रेवेन्यू देख लीजिए. रेवेन्यू कितना आ रहा है, मान लीजिए दोनों केस में हाई हाई आ रहा है, तो कितना आएगा, 10 एंड 14, राइट. पहले में 10 एंड दूसरे में 14. आपके 15 आपका एक्सपेंडिचर हो रहा है. कॉस्ट 15 क्यों है? एक तो होगा आपका बिल्डिंग प्रोडक्शन लाइन 12, प्रोटोटाइप 12 प्लस प्रोटोटाइप 0.5, फिर आपका सेफ्टी में 1 और 1.5 क्या आपका लॉन्च कर रहे हो. लॉन्च दैट मीन बिल्डिंग प्रोडक्शन लाइन. एंटर का भी कॉस्ट था ना 1.5. सो आई हैव आल्सो रिटन इट हियर. ओके, तो ये कॉस्ट कितना आ गया 15. तो यहाँ पे आपका पे ऑफ कितना आ रहा है 9. ये पे ऑफ आ रहा है 9. इसी तरह आप सबका पे ऑफ निकालोगे. यहाँ पे क्या है, आपका हाई और लो वाला केस है, तो 10 प्लस 6 हो गया. कॉस्ट तो उतना ही रहेगा 15. तो यहाँ पे पे ऑफ कितना है 1. यहाँ पे लो और हाई है, दैट मीन 5 और 14, कॉस्ट उतना ही है. यहाँ पे लो है, देन 5 6, ये कॉस्ट हो गया. Once you got this cost, then what you will do, and you know the probability of each of them is they're independent, right? Probability are equal. So you will take a weighted average. Weighted average of what? Weighted average of 9 1 4 minus 4. कितना हो गया? -4 और 4 -4 तो चला गया. 10, 9 plus 1 10 और 0.25 इसका यानी भाई 4 करोगे तो आपका आ गया 2.5, राइट. तो ये आपका, सी आप देख लो ना, आप डिसीजन ट्री बनाते हो इस तरह हो, लेकिन कैलकुलेशन बैकवर्ड करते हो. और रिमेंबर दिस इज कॉल्ड योर इंडक्शन. आफ्टर दैट once you have reached here nature, now this 2.5 you will write at the same place, and if it suppose at this point you exit, तो आपके क्या क्या कॉस्ट इन्वॉल्व हो रहा है. एक तो आपने प्रोटोटाइप बनाया और दूसरा आपने सेफ्टी टेस्ट किया. तो प्रोटोटाइप का कॉस्ट कितना था 0.5 और सेफ्टी का कॉस्ट 1.0. तो आपने यहाँ पे मान लीजिए सपोज कि आपने प्रोटोटाइप बनाने किया, तो सेफ्टी टेस्ट करने के बाद एग्जिट किया, तो आपका लॉस कितना हो गया -$1.5. और यहाँ पे कितना प्रॉफिट आ रहा है 2.5. तो आप इन दोनों में कौन सा चूज करोगे? ऑब्वियसली आप देखोगे ना कि 2.5 वाला चूज करोगे, राइट. सो इस दिस वे यू चूज. दैट्स व्हाई यू नो व्हेन कंपेयरिंग दिस टू आई हैव रिटन 2.5. नाउ you have done for this line. Now similarly let's you will do for say for 14 plus age, right. इसकी probability 0.3 थी. Then here also you will have two option, either to build production line and enter or exit. If you build production line, then what will happen? In this case you will have only demand high or low. See why you are not having high low निकाल के, क्योंकि यहाँ पे आपका 8 plus age वाला तो चला ही गया ना. Now you have only one demographic, 14 plus demographic. ओके, सो उसकी वैल्यू क्या होगी? 14 प्लस वाले केस में क्या था, इट वाज 14 एंड 6 था. तो ये मान लीजिए हाई डिमांड है तो आपका रेवेन्यू आएगा 4, और लो डिमांड है तो रेवेन्यू आएगा 6, एंड दे आर इंडिपेंडेंट. दैट्स व्हाई आई हैव टेकन 0.55. सी क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स है, इतना नहीं आपको ऐसे लग रहा होगा, इतना इजी नहीं. इसको यानी करोगे आप अभी ना कभी कभी तो 7-8 घंटे भी चला जाएगा, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं. यूपीएससी प्रिपरेशन में सपोज कीजिए आपने 30 आवर्स की डिसीजन मेकिंग में, 30 तो नहीं 20 to 25 आवर्स ही आपने डिसीजन मेकिंग में लगा दिए, तो आपका 15-20 मार्क्स तो सेट हो गया ना, राइट. दैट्स फाइन. एंड इफ यू डू क्वेश्चन लाइक दिस, इजी क्वेश्चन मत करो. 0.5 into 0.5, कॉस्ट तो आपका सेम रहेगा. कॉस्ट सेम क्यों रहेगा? कोई चीज चेंज हुआ है नहीं. प्रोटोटाइप यहाँ भी बना रहे हो, सेफ्टी टेस्ट भी हो रहा है, एंड प्रोडक्शन लाइन एंड एंटर, तो 15 रहेगा, राइट. तो वहां पे कितना पे ऑफ आया -1, यहाँ पे -9. क्यों? सी आप देख रहे हो यहाँ पे -1 क्यों आ रहा है? क्योंकि सी आपका ये वाला डिमांड सेक्टर तो चला ही गया.
8 वाला, 8+ वाला, जो कि अभी बहुत सारे बच्चे थे 14 में, राइट? तो यू हैव दिस पे ऑफ। अब क्या करोगे, इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू लोगे यहाँ पे, इन दोनों की एक्सपेक्टेड वैल्यू कितना लेकर आएगा, इट शुड कम 4 पॉइंट कितना हो गया, 9 माइनस 10 -5 हो गया, राइट? -5 हो गया, -5 और इसमें आप चूज करोगे -5 और 1.5 में -1.5, ओके। तो यानी इसको चूज कर, उसके बाद ये हो गया, और फिर क्या हो गया आपका थर्ड केस, तो क्या है, ठीक, यहाँ भी आप एग्जिट कर सकते थे, 1.5 हो गया। थर्ड केस में क्या है, आपका अनसेफ है, अनसेफ की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, क्वेश्चन में दे रखी थी 0.05, तो सेफ की 0.65, 14 प्लस की सेफ फॉर 8 प्लस 0.65, इसकी 0.13 और इसकी 0.05। इसकी यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे लॉस कितना हुआ, अगेन 1.5, क्यों, क्योंकि आपने प्रोटोटाइप बनाया, प्रोटोटाइप किया और सेफ्टी टेस्ट किया, दोनों में कितना एक्सपेंडिचर हुआ, -0.05 एंड माइनस, ठीक है, दिस इज फाइन, आप इसमें से चूज कर लोगे। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू आ गया, यहाँ पे वैल्यू आ गया, ओके, नाउ लेट्स, यहाँ पे 2.5, just a minute, give me 1 second, I have to refer one thing. -1.5, -1.5, this is fine, okay. आप इन दोनों की एक्सपेक्टेड वैल्यू लोगे तो आप देखना 1.1 आ जाएगा, राइट? 2.5 का 0.65 और -1 का यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू लोगे आप, तो और इसकी यानी तीनों की एक्सपेक्टेड वैल्यू लोगे तो आप देखना ये चीज आ जाएगा, ओके। ये फाइन हो गया, ये आपका प्रोटोटाइप वाला केस हो गया। तो आप जब लोगे तो आपने प्रोटोटाइप से आपकी वैल्यू कितनी आई, यानी देखा जाए तो 1.1 आई अब तक, ओके, अब तक आई 1.1। नाउ यू विल कंपेयर इट विद अनदर केस, विच केस, कि आपने प्रोडक्शन लाइन पहले बना ली। ठीक, यदि जनरली सोचा जाए ना, आप इस क्वेश्चन में एक होता है सेंसिबिलिटी डेवलप हो जाती है, पढ़ते पढ़ते आपको कि प्रोडक्शन लाइन पहले बना के मैं $14 मिलियन इन्वेस्ट करके फिर मेरा यानी व्हेन यू मेक ए प्रोडक्शन लाइन, आपको पता है प्रोडक्ट की कॉस्ट कुछ नहीं है, लेकिन प्रोडक्शन लाइन बनाने की कॉस्ट आ रही है आपकी $12 मिलियन, और प्रोटोटाइप की कॉस्ट केवल $0.05 है। यदि मान लो ये 8 और 9 के आसपास होता है तब तो समझ में आता है। तो आपको वो सेंसिबिलिटी विदाउट सॉल्विंग द क्वेश्चन वो डेवलप हो जानी चाहिए कि नहीं, ये इसके होने के चांसेस कंपेयर टू प्रोटोटाइप बहुत लेस है, इट कैन नॉट गिव मी मोर पे ऑफ। ये इस तरह का इंट्यूशन डेवलप होना चाहिए, ओके। कैलकुलेशन से वो ठीक है, लेकिन कुछ इंट्यूशन डेवलपमेंट भी बहुत जरूरी है। मान लीजिए आपने प्रोडक्शन लाइन डेवलप की, ठीक है, उसके बाद आपने फिर वो टेस्टिंग की, वही 3 केसेस 8+, 14 एंड अनसेफ। मान लीजिए 8+ के लिए टेस्टिंग की आपने, और फिर आपके पास 2 ही ऑप्शन है, फिर क्या ऑप्शन कर सकते हैं, तो एंटर करोगे या एग्जिट करोगे। मान लीजिए आपने एंटर कर लिया, फिर आपके पास 2 डेमोग्राफिक आएंगे और उनके 2 केसेस, बाय 2 केसेस वी हैव ऑलरेडी सीन। सो अब उनका रेवेन्यू देखते हैं, रेवेन्यू कितना आएगा, रेवेन्यू तो सेम रहेगा, 10+, 14, 10, 14, 10, 6, 5, 14, राइट। आपके कॉस्ट देखो, कॉस्ट में केवल क्या चेंज आएगा, कॉस्ट सेम है, बस एक डिफरेंस आएगा कि आपका जो प्रोटोटाइप का जो कॉस्ट है, see what was the given in question, if you build the production line first, then the cost of prototype is almost 0, and what was the cost of prototype in the first case, 0.05। तो इस केस में आप क्या कर रहे हो, प्रोटोटाइप पहले बना रहे हो, फिर प्रोडक्शन लाइन बाद में बना रहे हो। यहाँ पे आप प्रोडक्शन लाइन पहले बना रहे हो, प्रोटोटाइप बाद में बना रहे हो, आपके रेवेन्यू दोनों में सेम है, केवल कॉस्ट में डिफरेंस आ रहा है। कॉस्ट में डिफरेंस कितना आ रहा है, केवल 0.5 का। तो वही आपको समझ जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन तो, ये ऑप्शन तो नहीं होगा, लेकिन आप समझ भी जाओगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यू हैव टू ड्रॉ ऑल दिस इन एग्जामिनेशन, तो दिस इज फाइन। आई एम अज्यूमिंग कि दिस इज फाइन, राइट। रेवेन्यू आप लिख लोगे, उसमें कॉस्ट आपको पता ही है -14.5 कैसे आया, और फिर उसकी सबकी एक्सपेक्टेड वैल्यू लोगे, मल्टीप्लाइंग 0.2525, आपके पास ये 3 आ जाएगा ऑन नोट। दिस इज नॉट डिसीजन मेकिंग पॉइंट, नोट। फिर आप उसको कंपेयर करोगे एग्जिट से। एग्जिट में 13 क्यों है, यहाँ पे आपने प्रोडक्शन लाइन बना ली है $12 की, सेफ्टी टेस्ट आपका $1 का, सॉरी यानी $1 मिलियन, $13 मिलियन का। आप 3 और 13 को कंपेयर, -13 को कंपेयर करोगे, तो डिसीजन आप कौन सा लोगे, 3 वाला लोगे। 3 में पे ऑफ है, राइट, पॉजिटिव पे ऑफ, तो दिस विल बी योर 3। आफ्टर दैट सेम थिंग यू विल डू फॉर द 14+, एंटर और राइट। मान लो हाई डिमांड है, तो आपके रेवेन्यू क्या है, केवल 14 होगा,
ओके 8+ वाला तो चला जाएगा, 10 वाला रेवेन्यू चला जाएगा, लो डिमांड में 6 वाला चला जाएगा, 6 रहेगा, लेकिन आपके कॉस्ट उतने ही रहेंगे। तो यहाँ पे -0.5 है, यहाँ पे -8.5 हो गया, राइट। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू कितना आ रहा है, -4.5, राइट, विच इज लेस देन योर एग्जिट। एग्जिट कॉस्ट कितना है, -13। तो आप किसको चूज करोगे, -4.5 को, राइट। फिर यहाँ पे आपका 3 आ गया, -4.5 हो गया। यहाँ पे मान लो अनसेफ वाला केस कितना है, -13। आप इन तीनों की एक्सपेक्टेड वैल्यू लोगे कैसे, 3 मल्टीप्लाइड बाई 0.65, 4.5 multiplied by 0.3 and 0.05 multiplied by -13, you will get -0.05। आप देख रहे हो, इसके यानी कोई इसकी पे ऑफ का वैल्यू नहीं है। सिर्फ मान लो यदि आपके पास ये ऑप्शन नहीं होता कि प्रोटोटाइप पहले बनाओ, तो ये जो एडवेंचर था, इट इज गोइंग टू गिव यू अ नेगेटिव कॉस्ट, राइट। यदि मान लो आपसे क्वेश्चन, मान लीजिए सपोज कीजिए ये प्लस होता, तब भी आप प्रोटोटाइप पहले बनाते, लेकिन एटलीस्ट यानी आपको प्रोटोटाइप वाला ऑप्शन नहीं था, फिर भी आपके पास कुछ प्रॉफिट तो होता है, लेकिन यहाँ तो प्रॉफिट ही नहीं है। यदि आपने बिना प्रोटोटाइप के गए होते इसमें, तो इट वुड हैव बीन अ लॉस मेकिंग वेंचर, राइट। सो दिस इज व्हाट द फर्स्ट क्वेश्चन says. So what you will choose? You will choose, this is the answer, you will build the prototype first. Now let us move to the second part of this question. This question is slightly difficult. What it says, suddenly it turns out that the original estimate of the cost of safety testing was incorrect. हमारी safety testing cost कितनी थी, $1 million, right? And analyze the sensitivity of WalkTech optimal plan of action to the cost of safety testing. See, sensitivity का मतलब क्या है? Sensitivity is a part of your QAM syllabus as well. Sensitivity analysis. Let's say I write a equation. मान लो आप linear programming में let's say simple एक equation लिखते हैं, 2a plus 4b, राइट। ये मेरे प्रॉफिट्स हैं, राइट। मान लो मेरा प्रॉफिट फंक्शन है, माय प्रॉफिट आर गिवन बाय ए प्रोडक्ट और बी प्रोडक्ट है। अब ए से मान लीजिए मेरा प्रॉफिट आ रहा है 10 रुपीज का, और बी से मेरा प्रॉफिट आ रहा है 5 रुपीज का। सो लेट्स से यदि मैं 2 बनाता हूं तो मेरा टोटल प्रॉफिट कितना आएगा, 20 प्लस 20, 40 हो जाएगा। So can you see this coefficient? How if I keep on varying this coefficient, my profit will change. इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं शैडो प्राइसिंग में, when we discuss linear programming with shadow pricing. I do not want to go at this moment. Okay, otherwise we will go in a deep water. I assume कि आप समझो कि what is sensitivity. इस केस में क्या है, इस केस में आप सोचो कि आपका मान लो सेफ्टी जो कॉस्ट का जो एनालिसिस था वो इनकरेक्ट है। आपने क्या बोला कि सेफ्टी टेस्ट वाज $1 million। मान लीजिए वो यानी वो अंडर एस्टिमेटेड है, मान लीजिए वो ज्यादा हो सकते थे, तो आप कहाँ तक सेफ्टी टेस्टिंग की कॉस्ट को बियर करोगे। तो आपने देखा था अभी हमने व्हेन यू डिड दिस एनालिसिस, व्हाट वाज योर प्रॉफिट इवन व्हेन यू बिल्ड द प्रोटोटाइप फर्स्ट, प्रॉफिट वाज 1.1, राइट, $1.1 million। तो लेट्स से आप मान लीजिए कोई आपके सेफ्टी जो टेस्ट है उसको $1 million से फर्दर इंक्रीज कर दो, तो आपका कितना हो जाएगा, $2 million। तो आपके प्रॉफिट कितने रिड्यूस हो जाएंगे पूरी एनालिसिस में, 1.1 से 1 और रिड्यूस हो जाएगा, इसका मतलब $0.1 million बचेगा। लेकिन आपने उसको मान लो 1.1 से इंक्रीज कर दिया, यानी जो टोटल प्रॉफिट आ रहा था उसको पूरा सेफ्टी टेस्ट में, तो आपका प्रॉफिट 0 रहेगा। So at what point till if the safety test cost is less than 2.1, तब तक तो ठीक है, तब तक तो यानी एटलीस्ट ब्रेक इवन तो होगा, यानी एम्प्लॉयज विल लर्न समथिंग, एक्सपीरियंस भी होता है। इफ ए प्रॉफिट, इफ ए प्रोजेक्ट इज लॉस मेकिंग और नॉट ब्रेक इवन, सो एटलीस्ट वो लर्निंग भी होती है, राइट। सो दिस इज व्हाट आई मीन टू से हियर कि till 2.1 $1 million safety cost, you will take this project. Now see the third part. What it says, suppose WalkTech has also the possibility of conducting a market survey.
which would tell exactly which demand scenario is true. Let's say you saw the demand scenario. Okay. Demand scenario कितना कितना था? Okay. Okay. दो demographics थे ना? Young and old वाला, right? Young and old means that 8 to 14 and 15 years. The market research cost, market through market survey, they can find out exactly which demand scenario is true, whether high, low, low, high. आपके 4 cases बने थे, high, 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 low, low, high and low. इसमें कौन सा true है? But this market research will cost $1.5 million. If done simultaneously for both demographic, यानी आपके दो demographic कौन है? एक तो 18 to 14 years है, दूसरा 14 plus years है. तो यदि आप इनके दोनों के simultaneously research करते हो, then it will cost how much? $1.5 million. And if done for only one demographic, then it will cost $1 million. How, if at all, your answer, आपका जो first part में जो आपने tree बनाया था, यानी जिसमें आपका final profit आया था कितना? $1.1 million. वो कैसे change होगा? इस क्वेश्चन को करने से पहले आप सोचो कि okay, we will go to that demographic tree first. फिर यहाँ पे आप सोच सकते हो. यहाँ पे आप सोचिए कि मान लीजिए मैं मार्केट रिसर्च कर लेता हूँ वहाँ पे. ओके, सो मेरा वहाँ पे मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन मेरे पास दो कॉस्ट है. 1.5 यदि मैं दो डेमोग्राफिक के लिए करता हूँ, 1 इसमें आई डू फॉर 1 डेमोग्राफिक. ओके, सो आप सोचोगे कि क्या चेंज आ सकता है. यू विल से कि मान लीजिए मैं दोनों के लिए करता हूँ तो 1.5 मान लीजिए मेरा कॉस्ट हो गया और मेरा प्रॉफिट ही 1.1 था. फिर आप सीधे उस 1.1 में से 1.5 माइनस नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज इन्वॉल्व है. तो आप सोचो कि ओके चांसेस हैं, यानी कि इसको मार्केट रिसर्च करने के बाद भी कुछ मेरा प्रॉफिट, मान लो कि मैं 1 के लिए करता हूँ तो यानी मान लो 1 के लिए करता हूँ तो तब भी यानी प्रोबेबिलिटी कभी 100 से ज्यादा तो होगा नहीं. तो मेरा 0.1 के लिए यानी इफ यू डू वन डेमोग्राफिक तो आपका $1 million कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाएगा, फिर भी आपका 0.1 तो आपका प्रॉफिट रहने के चांसेस हैं. तो आप सोचोगे ओके दिस शुड बी योर थॉट प्रोसेस. देन यू विल से ओके हाउ माय डिसीजन ट्री विल चेंज, वेयर आई शुड इंक्लूड मार्केटिंग रिसर्च बिफोर प्रोटोटाइप. कि मान लो मैं प्रोटोटाइप बनाने से पहले, कि प्रोडक्शन लाइन बनाने के बाद, सेफ्टी टेस्ट के बाद, दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. इफ यू कैन थिंक दैट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप मार्केट रिसर्च को कहाँ इन्वॉल्व करना चाहोगे. लेट्स सी. ओके, नाउ वी विल गो टू एक मिनट, जस्ट ए मिनट. द अपॉर्चुनिटी, सपोज आपने डिफरेंट सिनेरियो लगा के देखिए कि आपने रिसर्च आपका जो रिसर्च है मार्केट सर्वे विच आर डूइंग, आपने डिफरेंट तो आपका देख लो आपका डिसीजन ट्री कितना लंबा हो जाएगा. इट विल बिकम वी स्टडीड कंपाउंड लॉटरी, इट विल बिकम कंपाउंडेड लॉटरी. ओके, सो I would recommend you to read this thing in your free time, but I will tell you what is the crux here. Okay, what is the logic you can follow. The upper part say that you can include that market survey thing anywhere, but there is some logic. What is the logic? It says we can completely ignore the possibility of building a production line before the safety test, right? क्योंकि हमने ऑलरेडी देख लिया है कि अब प्रोडक्शन लाइन, व्हेन यू बिल्ड प्रोडक्शन लाइन बिफोर सेफ्टी टेस्ट बिफोर प्रोटोटाइप, क्या होता है. उसमें तो नेगेटिव आया था ना, हमने फर्स्ट प्रोटोटाइप में देखा, सॉरी फर्स्ट एग्जांपल में देखा था कितना आया था, माइनस पॉइंट समथिंग, राइट. हमने दो चीज कंपेयर की थी, 1.1 और माइनस कुछ था. ओके, अब देख लीजिएगा. तो ये तो केस चला गया बिकॉज वी हैव ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड इन पार्ट 1 दैट डूइंग द सेफ्टी टेस्ट फर्स्ट अचीव्स एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ऑफ 1.1 का प्रॉफिट था. और उसमें से सी 1.1 का फाइनल प्रॉफिट था और सेफ्टी टेस्ट का कॉस्ट कितना था. सेफ्टी टेस्ट फर्स्ट अचीव प्रॉफिट ऑफ 1.1, ठीक है. एंड 1.1 वाज हायर देन डूइंग द प्रोडक्शन लाइन. सी इफ यू आर नॉट एबल टू, आप यहाँ पे देखिए व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. आई एम ट्राइंग टू से दिस.
1.1 is greater than when you build the production line first. This is minus 0.05. Okay. So once you have done this, just a minute. See, here is the logic. Okay, just a minute. Okay, the only potential benefit of doing the production line first is the saved $0.5 million prototype cost. आपने देखा था नहीं, प्रोडक्शन लाइन पहले बनाते हो तो आपको क्या बचता है, केवल 0.5 मिलियन का जो प्रोटोटाइप होगा उसकी कॉस्ट बच जाती है, लेकिन आपने देखा था प्रोटोटाइप की कॉस्ट क्या है, ओनली $0.5 मिलियन है, और प्रोडक्शन लाइन बिल्ड करने की कॉस्ट कितनी है, $12 मिलियन, जो कि बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू दिस. दैट्स व्हाई यू डिड नॉट बिल्ड प्रोडक्शन लाइन फर्स्ट. Thus, no information could ever change the difference in the payoff to the advantage of the production line. See, indirectly what this logic is trying to say कि आप सेकंड वाला केस अभी भी नहीं चूज करोगे when you bring in market survey, because क्योंकि प्रोडक्शन लाइन पहले बनाने में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, $2 million, which is very very high compared to building the prototype first, that is $0.5 million. Okay. Now, since research always costs at least $1 million, production line first cannot become optimal due to the possibility of doing market research. Okay. And second, now the second logic, ये तो आपको तो पहले में क्या हो गया कि प्रोडक्शन लाइन आप में पहले नहीं बनाओगे कंपेयर टू प्रोटोटाइप. ओके. और इसमें आप मार्केट रिसर्च करने का कोई पॉइंट भी नहीं है, बिकॉज इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना था, 12 एंड माइनस प्रोटोटाइप का कॉस्ट ये था और प्रोडक्शन लाइन का कॉस्ट ये था. So this is fine. Now come the second logic. It is never profitable to do research after the safety test. Okay, why? Now see, think, before you see this, just think कि आपका जो सेफ्टी टेस्ट है उससे पहले आप रिसर्च कर रहे हो. ओके, सॉरी आफ्टर उसके बाद कर रहे हो. क्यों? आप सोचो इसको. यदि आई विल लीव यू नो से इस पूरे जो इस पर्टिकुलर सीम में दिस इज द मोस्ट लॉजिकल पॉइंट. इफ यू कैन थिंक कि व्हाई if you do this market survey research after safety test, it is not profitable. आप उस तरह सोचो, ओके, मेरे सेफ्टी टेस्ट के जो थे उसमें आपका 8+ 14 years और अनसेफ था, उसमें प्रोबेबिलिटी थी 0.65, 0.3, 0.05. ओके, उससे मेरा कुछ पे ऑफ आ रहा था. मेरा इफ आई डू रिसर्च ओनली फॉर 2 डेमोग्राफिक तो उसका कॉस्ट आएगा 1.5, 1 डेमोग्राफिक का 1 आएगा. तो आप उसको कंपेयर करो, तो देन यू विल गेट द एनालिसिस. देन व्हाट इट से, इफ द रिजल्ट वर सेम फॉर बोथ ग्रुप्स, then the only case where the information is useful, that is if see what मान लीजिए आपने रिसर्च किया, ओके, सेफ्टी टेस्ट, आपने सेफ्टी टेस्ट बनाया. सेफ्टी टेस्ट में आपके 3 केसेस थे, 8+, 14+ एंड अनसेफ वाला, राइट. उसके बाद आपने रिसर्च, नाउ वी आर अज्यूमिंग दैट आफ्टर सेफ्टी टेस्ट यू आर मूविंग इनटू रिसर्च. रिसर्च मीन मार्केट सर्वे के लिए, और उसका कॉस्ट कितना है, एंड इट्स कॉस्ट था 1.5 यदि आप 2 डेमोग्राफिक के लिए कर रहे हो. तो व्हाट दे आर सेइंग कि आपको पता है, जब आपने मार्केट रिसर्च इन्वॉल्व नहीं किया था, आपका क्या डिसीजन ट्री का लाइन था वो आपको ऑलरेडी पता है. नाउ व्हाट दे आर सेइंग कि आपने मान लो रिजल्ट को, मार्केट सर्वे को उसके बाद किया है, दैट द ओनली केस वेयर द इंफॉर्मेशन इज यूजफुल if both the groups have low demand. फिर what the groups have low demand means, जब आपने देखा था ना इस वाले प्रोडक्शन में, let me show you, यहाँ पे when the both the groups were having low demand, that is -0.4, right. क्योंकि यहाँ पे सब में पॉजिटिव पे ऑफ था, तो यहाँ से कोई आएगा, यहाँ पे तो पता ही है, राइट, आपको कि यहाँ पे पॉजिटिव पे ऑफ है, 9 है, 1 है. मार्केट सर्वे आपको क्या बताएगा, मार्केट सर्वे यू आर डूइंग ऑन दीस 2 डेमोग्राफिक ग्रुप, हाई 8 to 14 एंड 14+ वाले पे. लेट्स से मार्केट सर्वे ने सपोज आपको बताया कि ओके, कि आपको बताया कि ओके यहाँ पे हाई है, यहाँ पे, तो क्या फर्क पड़ता है, वो तो आपको पता ही है. लेकिन यहाँ पे लो था, ओके. सी, यहाँ पे 2, आपका पर्पज क्या है, आपको ये वैल्यू मैक्सिमाइज करनी है. ये वैल्यू मैक्सिमाइज कैसे हो सकती है, ये वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, आपको बस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट करनी है. मान लीजिए सपोज कीजिए आपको पता होता है कि इसके चांसेस 0, आपको पहले पता होता है कि -4 होने वाला है, तो अब इसमें कोई प्रोबेबिलिटी डालते नहीं, यहाँ पे 0.25 डालते हैं, यहाँ पे 0 रखते हैं.
1 को इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, वही एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको मार्केट सर्वे दे सकता है, राइट। अदरवाइज मार्केट, क्योंकि मान लीजिए मार्केट सर्वे केवल इस नेगेटिव वैल्यू में जितनी प्रोबेबिलिटी आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो उसको चेंज कर सकता है, और कोई उसका रोल नहीं है मार्केट सर्वे का, राइट। सो लेट्स से मार्केट सर्वे ने आपको बता दिया कि इसकी ये चीज है कि इस पर नेगेटिव आएगा, तो आप इसकी जगह क्या यूज करोगे, आप इसकी जगह एग्जिट वाला ऑप्शन यूज करोगे, आप उन तीनों के लोगे और इसको rather than, यानी व्हाट यू कैन डू, इसके बाद यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो, या तो आप उन तीनों की एक्सपेक्टेड वैल्यू लोगे, यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो, यानी इनडायरेक्टली आप -4 को -1.5 से रिप्लेस कर सकते हो। सी इसका पॉइंट क्या है, सी व्हाई नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एक्सपेक्टेड वैल्यू 941 -4, ये पहले आपने एक्सपेक्टेड लिया इसको 1/4, तो आपका है 2.5, राइट। अब मार्केट सर्वे करने के बाद आप क्या कर सकते हो, माइनस इसकी जगह है, ओके, आपको बता देगा मार्केट सर्वे, आप क्या करोगे -1.5 ले सकते हो, ओके, इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू और इसकी, लेकिन जब सिंस यू नो मार्केट सर्वे हैज टोल्ड यू इन दैट मार्केट सर्वे इन्वॉल्व सम कॉस्ट, यू विल टेक आउट दिस वैल्यू, इसकी वैल्यू आप चेक करो, इसकी वैल्यू कितना है, 9 और 10, 9 और 10 14 में से 1.5 गया, 12.5/4, राइट, तो दिस इज 3.1 कितना हो जाएगा, राइट, 125, राइट, ओके, एंड -1 एंड दिस इज ग्रेटर देन 2.125, राइट। तो इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ये, और जब आपने मार्केट सर्वे नहीं किया था तो आपकी वैल्यू कितनी आ रही थी, 2.5, तो क्या इसे मार्केट सर्वे की इंफॉर्मेशन यूज करने के बाद भी आपको जो मार्केट सर्वे आपने यूज कर लिया तो आपकी ये तीनों वैल्यू तो सेम रहेंगी, 914, ओके, सिंपली मार्केट सर्वे बता देगा कि इसकी डिमांड लेस है बहुत, तो इसकी जगह आप क्या करोगे, माइनस आप करोगे, आप क्या और क्या ऑप्शन हो सकता था, एग्जिट कर जाते, उसकी वैल्यू यहाँ पे आपने ली, उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू लिया, लेकिन मार्केट सर्वे की कॉस्ट कितना है 1, वी आर डूइंग फॉर 1 डेमोग्राफिक, इसकी वैल्यू कितना है टोटल, इसकी वैल्यू है 2.125, 2.125 इज लेस देन 2.5, सो दैट्स व्हाई दिस इज ए प्रॉब्लम। सो सी, कैन यू सी दिस क्वेश्चन इज डिफिकल्ट, इसमें बहुत सारे थॉट पॉइंट्स हैं। सो वंस यू हैव अंडरस्टूड दिस, सो आई थिंक सेम थिंग दे आर ट्राइंग टू से, आप पढ़ लेना, यानी क्या बोल रहे हैं आप, ओके, आप ये देख लेना, हाँ, just 10 minutes more please, okay, so now once you have understood the second part, see the third point, the potential benefit of research is that it allows work tech to save the cost of production line under unfavorable demand. Unfavorable demand means when it is a low condition, so there would be no point in plans of action where research is conducted after the production line is built. Production line वाला केस तो क्लियर है, राइट, आपको पता ही है, वहां पे $12 million का इन्वेस्टमेंट हो गया, he will not take that. What I meant to show you, अब आप देखो ये डिसीजन ट्री, ओके, let me just show you this, okay, अब आप क्या कर रहे हो, अब क्या 3 ऑप्शन है, आप यू डू नो रिसर्च, या आपने कोई रिसर्च नहीं किया तो आपको ऑलरेडी सेक्शन ए में पता ही है उसकी वैल्यू कितना है, 1.1 है, देन यू कैन डू रिसर्च फॉर बोथ, यू नो बोथ डेमोग्राफिक, उसका कॉस्ट कितना है 1.5, और ये रिसर्च ओनली फॉर 1 का मतलब एक ग्रुप के लिए मान लीजिए 8 to 14 वाले के लिए, और दूसरा ग्रुप क्या है 14+ वाले के लिए, राइट, आपके 3 ऑप्शंस हैं, लेट्स से ये तो फाइन है, दिस यू हैव अंडरस्टूड, इसमें तो कुछ नहीं है, लेट्स से यू डू रिसर्च फॉर बोथ, you go there, then you can identify दोनों डेमोग्राफिक में हाई हो सकता है, दोनों में हाई लो हो सकता है, या लो हाई हो सकता है, राइट, यू विल नॉट टेक लो वाला केस, राइट, क्योंकि रिसर्च वो उसको एलिमिनेट कर दे, लेट्स से दोनों में हाई है, then what you can do, then you can go for safety test, so that's the idea here, कि there is no point of going research after safety test, research has to be done before safety test, तभी, so once you have gone for this thing, then you will go for the safety test, उसमें 8+, 14+, और ये है,
और उसकी प्रोबेबिलिटी कितना था 0.6, 0.3, 0.05। अब आपको कॉस्ट देखना है, कॉस्ट कितना रहेगा। ठीक, कॉस्ट तो सेम है, ये हाई हाई वाला केस है, हाई हाई वाले केस में 10 और 14 था। ठीक है, अब यहाँ पे सॉरी रेवेन्यू, ये रेवेन्यू है। कॉस्ट देखिए, कॉस्ट आपका क्या क्या रहेगा। 12 हो गया प्रोडक्शन लाइन बिल्ड करने का, और 0.5 प्रोटोटाइप का हो गया, देन आपका 1.5 सेफ्टी टेस्ट हो गया, 1.5 लॉन्च टेस्ट हो गया, और 1.5 हो गया आपका रिसर्च का। ऐड कीजिए इसको, 12 प्लस 15, आई एम टेकिंग 1.5, 15, 16, 16.5, गॉट इट। 16.5, इसमें से इसको माइनस कीजिए, आपका 7.5। फिर आप यूज करोगे बैकवर्ड इंडक्शन, यू नो, बैकवर्ड इंडक्शन। सेम वे आप 14 पे कर दोगे। अभी क्लियर है। यहाँ पे क्या है, केवल सॉरी हाई हाई था ना, अभी 14 वाले एज केस के लिए 14 वाले केस के लिए हाई कितना हो जाएगा, जस्ट ए मिनट। सी यहाँ पे आपने 8+ के लिए दो डेमोग्राफिक था ना, तो दोनों का हाई हाई लिया, राइट। यहाँ पे आप 14 वाले के लिए लोगे तो हाई कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। 8 वाला तो चला जाएगा, 8 वाले का जो क्या कहते हैं 10 आप नहीं लोगे, देन कॉस्ट आपका सेम रहेगा। तो दिस में ये यू गेट -2.5। यहाँ पे -3 कैसे आया आपका, लेट मी सी। अच्छा, आपने एग्जिट कर लिया, ओके। एग्जिट करने पे आपने यहाँ पे क्या क्या आपका कॉस्ट इन्वॉल्व हुआ है। एक तो रिसर्च का कॉस्ट इन्वॉल्व हुआ है, और सेफ्टी का सेफ का यानी सेफ्टी टेस्ट का। तो 1.5 और 1.5 ये आपका -3 आप यानी आप प्रोडक्शन लाइन बनाओगे नहीं, राइट। ओके, आपका ये अनसेफ हो गया नहीं। जब आपको बता दिया है जो सेफ्टी टेस्ट ने कि आप यू कैन नॉट लॉन्च दिस प्रोडक्ट, व्हाई यू आर गोइंग टू मेक प्रोडक्शन लाइन। सो दिस थिंग इज क्लियर। ये तीनों पे ऑफ क्लियर हो गया। देन यू विल टेक द एक्सपेक्टेड वैल्यू। आप तीनों के एक्सपेक्टेड वैल्यू लेंगे, 0.65, 0.3 है, तो ये आपका 3.975 आ जाएगा। Similarly, you will do for the low high case. High low. 3 cases बनेंगे, high low and low high. High low में again you will have, let's say ये आपका डिमांड आया, you from the research survey you got it high and low. फिर आप क्या करोगे, you have to decide whether to go for safety test or exit. मान लीजिए आपने एग्जिट किया तो आपका कॉस्ट इन्वॉल्व कितना होगा, 1.5। क्यों, क्योंकि आपने सेफ्टी टेस्ट नहीं किया और रिसर्चर कॉस्ट केवल 1.5 है। मान लीजिए आपने टेस्ट किया तो फिर आपके पास 3 सिनेरियो आएंगे, अगेन 8+ और अनसेफ। यहाँ पे कॉस्ट देख लीजिए, 10 तो 10 और 6, क्योंकि लो वाला केस है। डेमोग्राफिक में देख लीजिए, हाई पे आ रहा है 10 और लो पे आ रहा है 6। लेट मी वेरीफाई वंस अगेन। हाई पे है फर्स्ट केस में 10 और सेकंड केस में लो पे है 6। यस, 10 + 6, तो ये आपका रेवेन्यू हो गया। कॉस्ट आपके 16.5 ये ऑलरेडी मेंशन्ड। ओके, कैसे आया ये आप देख लीजिएगा। प्रोडक्शन लाइन, प्रोटोटाइप, सेफ्टी, रिसर्च एंड ये एंटर, व्हेन यू एंटर आफ्टर बिल्डिंग द लॉन्चिंग कॉस्ट। ओके, so this is fine. Okay, let's say for 14+ year, इसमें आप क्या कर रहे हो, say for 14+ year, right? Okay, so you will exit, right? Because it says it is only for say for 14+ year, right? So इसके लिए लो है तो you will exit. अनसेफ के लिए -3 एग्जिट कैसे है, ये वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ठीक है, अब मान लीजिए थर्ड सिनेरियो लिया आपने, लो हाई वाला। सो हियर आल्सो यू विल डू द सेम थिंग। जस्ट अ मिनट, क्वेश्चन इज लिटिल कॉम्प्लेक्स। दिस इज लो हाई, देन लेट्स से रिसर्च टोल्ड यू दिस इज लो हाई, देन अगेन यू हैव टू डिसाइड वेदर टू डू टेस्ट, और यहाँ पे एग्जिट होना चाहिए था। आई थिंक 1 लेग इज मिसिंग। ओके, और इसका कॉस्ट कितना आएगा जी, सपोज समबडी एग्जिट, यहाँ पे कितना कॉस्ट हुआ है, 1.5 ओनली, -1.5, राइट। सो सपोज यू वेंट फॉर टेस्ट, देयर आर 3 सिनेरियो, 8+, 14+ एंड ये 8+ के लिए ये लो एंड हाई है। तो लो, फर्स्ट केस में लो कितना है, फर्स्ट केस में लो इज 5, राइट। तो यू हैव टेकन 5, सेकंड केस में हाई कितना है, 14, तो यू हैव टेकन 5, 14,
कॉस्ट आपका 16.5, यू आर वेरी क्लियर। आप इसी तरह तीनों का कैलकुलेट करोगे, राइट। अनसेफ के लिए यहाँ पे यू नो दिस इज फाइन। आफ्टर दैट just let me, just a minute, okay, this is fine, ये हो गया। I need to tell you this value, okay, either you can calculate, see कैसे calculate करोगे, this into 0.65 and this into 0.25 and this into 0.05, otherwise let me tell you value is ओके ये वैल्यू आएगा, राइट। जो यहाँ पे लिखा है वही तो कैरी होता है, 0.725, ये डिसीजन मेकिंग में आ गया। तो सी अब कैसे करोगे, नाउ यू विल डिसाइड बिटवीन 0.725 और -1.5, यू विल चूज 0.725। यहाँ पे आप डिसाइड करोगे -0.375 और -3, यू विल चूज कम नेगेटिव वाला, ओके। यहाँ पे आप डिसाइड करोगे, यहाँ पे डिसीजन पॉइंट किधर है, ओके, यहाँ पे नोड आ गया, यहाँ पे नोड आ गया, यहाँ पे डिसाइड करोगे, ओके, यहाँ पे डिसीजन पॉइंट है। तो आपको एक तो ये वैल्यू आया 0.456, एक यहाँ पे वैल्यू आया 0.3725, ओके, और एक वैल्यू आया ये, राइट, सॉरी ये वैल्यू नहीं, आप इसको देखिए, 3 वैल्यूज आया, ये वैल्यू एंड ये वैल्यू, एंड देन हियर यू हैव नोड, देन यू विल टेक द प्रोबेबिलिटीज ऑफ these 3, okay, so this into 0.25, this into 0.25 and this into 0.25. And when you do that, you will get the 0.456. So what you are getting when you go for research, when you do research for both, your value is how much? What is the payoff? 0.425, 0.456. But without research, you are getting 1.1. Now see, now there is one more scenario. Let's say here you are doing research for both, simultaneously. Now there might be one question कि मान लीजिए हम इसको सीक्वेंसली करें कि रिसर्च एक ग्रुप के लिए पहले करें बाद में करें। अब देखो कि रिसर्च सीक्वेंसली भी करने पे कोई आपको इन्फॉर्मेशन तो ज्यादा नहीं मिलेगा, ओके, बस क्या हो सकता है कि लेट्स से एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, सपोज कि आपने एक हाई 8 to 14 वाले के लिए रिसर्च कर लिया, ओके, उसके लिए लो आया तो आप वहां पे ड्रॉप कर सकते हो। लेकिन वेदर यू आर डूइंग रिसर्च साइमल्टेनियसली और सीक्वेंसली, इट इज नॉट गिविंग यू एडिशनल एनी इन्फॉर्मेशन। तो व्हाट माय पॉइंट इज, आपका पे ऑफ चेंज नहीं होगा। पे ऑफ, इफ वेदर यू आर डूइंग रिसर्च सीक्वेंसली और साइमल्टेनियसली, योर पे ऑफ विल रिमेन सेम, सो यू नीड नॉट टू वरी। हाँ, यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है कि सपोज यू आर डूइंग रिसर्च for one demographic, because the question said if you do research for only one demographic, then your cost is $1 million. If you do for two, then the cost is $1.5 million. Okay, so ये 2 वाला केस तो ठीक है, आपने 1.5 लिया हर जगह, तो अभी क्या एक के लिए अलग ही इतना डिसीजन ट्री बनाने लगोगे? नो, सी यहाँ पे आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। व्हाट यू विल से कि लेट्स से इफ आई इवन डू रिसर्च फॉर ओनली वन, तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन वैल्यू है, मान लीजिए मैं दो चीजों को एनालाइज कर रहा हूँ और मैं एक चीज को एनालाइज करूँ उसमें से एक, तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन वैल्यू है कभी 2 वाले से ज्यादा तो नहीं हो सकती। लेट्स से आपके हाइड यू आर एनालाइजिंग 8 to 14 ग्रुप एंड 14+। अब इन दोनों को जब एनालाइज किया तो आपका कॉस्ट कितना है? 1.5। अब इसमें से सिर्फ इसको एनालाइज कर रहे हो तो इस जो इन्फॉर्मेशन है वो कभी जब जो आप इन दोनों को एनालाइज करें तो उससे ज्यादा तो इन्फॉर्मेशन, उसका सबसेट है ना, वी एग्री दैट उसका कॉस्ट $1 होगा। तो व्हाट यू कैन से कि इंफॉर्मेशन वुड आपका जो सपोज यू गो फॉर ओनली वन रिसर्च ऑफ ओनली वन ग्रुप, तो आपका सेविंग कितना है? 1.5 और 1 का डिफरेंस कितना है? 0.5। तो आपका पे ऑफ कितना बढ़ जाएगा? 0.456 प्लस 0.5, राइट, दैट विल बी 0.956 हो जाएगा। वो ठीक है, बट स्टिल 0.956 इज लेस देन 1.5। सी वन मोर थिंग हियर, वो 0.956 से भी कम हो सकता है because there are many probabilities involved, but this thing is very sure कि if you do research only for young men 8 to 14 group or old men 14+ group, you will save only $0.5 million, right? But you will not this will never exceed more than $0.5 million of 0.456, right? So in that case also you will go for no research. See,
यदि ये सब क्वेश्चन ठीक है, आपको बिग पिक्चर नहीं, इस क्वेश्चन में क्यों व्हाई द रिसर्च इज नॉट हेल्पिंग यू, बिकॉज द प्रोडक्शन लाइन कॉस्ट वाज वेरी वेरी हाई, $12 million एज कंपेयर टू डेवलपिंग ओनली ए प्रोटोटाइप. दैट वाज योर पॉइंट, $0.5 million. There is one more question, okay, one more part of this question which I would like just read it and see what this part says. Suppose that the demand is not independent. Independent क्या ना, जो अपने लास्ट के जो 4 cases दिखते हैं ना, high low low high, is not independent across demographic, but instead it is perfectly correlated. Correlation right? Correlation इनको नहीं पता, नहीं पता है तो पता कर लें, right? It is given by covariance xy upon sigma x sigma y, and it ranges between -1 and +1. Okay, so this is what you must know. It very very important concept. So what they are trying to say, but instead of perfectly correlated, if demand is high in one demographic, then it is for sure high in another as well. That is the meaning of correlation. Let's say x और y is correlated, positively correlated. What it means, x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, x decrease हो रहा है तो y भी decrease हो रहा है. यदि x बढ़ रहा है, y decrease हो रहा है, that is negatively correlated. How, if at all, that would change your answer to the part C. यानी लास्ट वाले पार्ट में आप इसको प्लीज आप इसको प्लीज सॉल्व कीजिएगा. आई एम टायर्ड, आई कैन नॉट टेक. एंड इसका जो सॉल्यूशन है वो सिंपल है. ओके, इसमें हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, आप देख लीजिएगा. यहाँ पे यानी सब कुछ सेम है. यहाँ पे रिसर्च हो रहा है. ओके, डिमांड वाला है यहाँ पे, राइट? डिमांड वाला यहाँ पे सिनेरियो ले लिया है. आप इसको प्लीज सॉल्व कीजिए. एंड इट्स अ वेरी वेरी हैवी क्वेश्चन. ओके, so I'm expecting that you will go take this, you will solve at least 2-3 problems more like this. UPSC problem we have already solved. You can watch our previous lecture. If you have any other question, please mention in comment. And if you want to take up want me to discuss any other question, I will do. What I'm also planning this ये जो डिसीजन मेकिंग का सर्टेनिटी वाला केस है, द क्वेश्चन विच केम इन 2015 एंड अगेन इन आई थिंक 2020 में भी आया है, उसको आई विल डिस्कस इन द क्लास डे आफ्टर टुमारो. थैंक यू वेरी मच.